This faculty development program aims to provide faculty members with an in-depth understanding of how AI tools and techniques can be utilized to enhance teaching methodologies, facilitate research, and promote innovative learning experience. This theme explores how AI-driven innovations are enhancing both the quality and efficiency of academic research as well as improving teaching and learning processes. I am confident that this FTP will serve as an excellent platform to share knowledge, explore new tools, and engage in stimulating discussions, all aimed at pushing the boundaries of research and education. The FTP includes a wide range of topics such as AI tools for research, that is to explore advanced AI tools that support data analysis, model development, and computational research. AI in classroom learning, that is to discover AI-driven tools that can transform teaching, such as personalized learning system, automated grading, and content creation. Hands-on sessions and demonstrations, that is to engage in practical sessions and live demonstrations with popular AI tools designed for both research and education. Future trends and opportunities, that is to gain valuable insights into the future of AI in academia, research, and the evolving trends in educational technologies. By focusing on these themes, the FTP would aim to equip educators and researchers with the knowledge and skills to leverage AI tools for improving their academic practices, enhancing productivity, and fostering innovation in both research and teaching. We have with us Dr. Sanjay Kumar Tiwari as our resource person today. Sir is an accomplished academician and researcher with an impressive background in the field of geology and education. With over 27 years of teaching, research, and academic experience, he holds an esteemed position as an associate professor and deputy director at the Academic Staff College, HRDC, and an adjunct faculty Department of Geology, Center of Advanced Studies, Institute of Science, PhD. He has garnered several prestigious awards such as National Human Resource Award by Vishal Bharat Sansthan in 2019 and recognitions from ISRO in 2017. His extensive experience and commitment to academia makes him a respected figure in the field of geology and higher education. I request the college administration to kindly felicitate our speaker. I request sir to kindly deliver your speech. First of all, I would like to thank Mr. Madam, Principal Sir, and my colleagues who are here in this hall. Today I am assigned to talk on a very, very important issue, I can say. How we are going to develop e-content, how we can contribute in the field of e-content in our respective disciplines. लेक्चर नहीं होगा, जस्ट कहानी की तरह से बताऊंगा. Only then you will be able to understand what e-content actually means. जो मेरा experience है, because basically I am a student of geology, I am not a student of computer science. In spite of that, I am daring to talk on this issue. Just because of my experience, what I have learned in the last 20 years. I am talking on this topic for the last 20 years. तो e-content का नाम भी लोगों ने दिया है. And unfortunately, in central India, जब भी मैं देश के अलग-अलग जगहों पे जाता हूँ, मैं पूछता हूँ कि what you have done in this area, what you have done, how whether you are involved in development of e-content or not. अधिकतर जगहों में मिलता है नहीं, ज़्यादा नहीं शुक्र. But जो coastal states हैं, तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल, सेंट्रल में दिल्ली, even Punjab, they have done a lot of work in e-content development.
सारा पैसा लेके आए हैं प्रोजेक्ट के लिए, फंडिंग आई है, लिक्विडिटी ह्यूज फंडिंग इज देयर, बट हमारा डिस्ट्रिक्ट वेटेज में लगातार पीछे रहा, चाहे वो एमपी हो, यूपी हो, झारखंड, बिहार हो। तो यहाँ के लोगों को स्पेशली मैं बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि जब मेरे जैसा व्यक्ति, when I joined BHU in 2004, I was assigned with the task of developing EduSet center in my university. तो मुझे लगा ये EduSet center है क्या चीज़? मैं जियोलॉजी का व्यक्ति, मुझे पढ़ना पड़ा जियोलॉजी है, लेकिन जब सर पे आ गया, वाइस चांसलर ने दे दिया टास्क कि you have to work and you have to develop this EduSet center. उस समय कलाम साहब was the president of that time, और उस समय देश के विश्वविद्यालयों को EduSet center दिया जा रहा था। जब मैंने सर्च करना शुरू किया, then I got that there are number of capacity building programs which are especially run by some prestigious organizations of India. तो मुझे लगा कि मैं तो जियोलॉजी का विद्यार्थी हूँ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसरो, एक नाम सुना होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और उसी का एक अंग है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग विच इज इन देहरादून। ये लोग ऑनलाइन प्रोग्राम्स तैयार करके उस समय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू किया था। हमने भी एक एमओयू साइन किया, उस समय तो एमओयू साइन करना पड़ता था, अब तो कुछ नहीं करना है, जस्ट यू कैन राइट अ मेल टू देम कि वांट टू डेवलप अ सेंटर इन योर इंस्टीट्यूशन, यू कैन गेट दैट सेंटर आल्सो आपके लिए। सर है कि आप इस सेंटर को अपने यहाँ भी ले सकते हैं। सर वी आर हैविंग दैट नोडल सेंटर आउटरीच प्रोग्राम जो ऑनलाइन होता है, किसका? जो आईआरएस कराते हैं है सर डॉक्टर आईआरएस अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, अगर है तो हमारा सेंटर 2006 से इसको कर, तो मुझे लगा कि आज बातचीत का जो मुद्दा होगा, बिकॉज ऑफ दिस ई कंटेंट डेवलपमेंट आई गॉट दिस एनआरसी। एनआरसी का मतलब नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ course material, courseware for the students, for the teachers and researchers of my discipline, that is geology, geophysics and geography. और मुझे एक prestigious center मिला course development करने के लिए, fund मिला, I got 20 lakh rupees for the development of course material in 2019. इसको ये मेरी कुछ किताबें हैं which is for the students of geology, geography and geophysics, जो लोग नेट वेट की तैयारी कर रहे हैं, those who are in post graduation, this is for them. The topic of today's talk is, there are 5 words. First word क्या है? Content. The second word is development. Third word is how you are going to manage it. इसके बाद लिखा है, इसके बाद थोड़ी सी हम लोग भूमिका करेंगे, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, उसके बाद करेंगे कि इसका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, हाउ इट इज यूजफुल इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, और इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। ये 5 सेंटर्स है जिसके अराउंड हम लोग मूव करेंगे। याद रखिए, ये कंटेंट की बात करें तो ये कंटेंट का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, नया नहीं है। But for the first time on the website of UGC, a news flashed that the government of India or the UGC is going to start the development of e-content wings. Content in electronic form, in more similar sense, educational content. एक advertisement भी आता है, that is also e-content. वो seconds आता है, लेकिन वो commercial है, professionally वो और जगह वाइबल है, but as far as we are concerned, we are here to develop educational content. So here the content means educational content. तो पहली बार ये कंटेंट को डेवलप करने के बाद 2007 में आ गए, and today we are in 2025. हमें 20 साल लग गए और हमने शुरू नहीं किया, हम समझ नहीं पाए। उसके बाद एक आता है ऑनलाइन कोर्सेज, ONCs, और एक वर्ड है MOOCs। दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑनलाइन कोर्सेज तो बहुत पहले से चल रहे हैं, कोई नया नहीं है। ई कंटेंट को आप देखेंगे हजारों रोज यूट्यूब में भर दिए जा रहे हैं,
लेकिन जैसे वर्ड ऑफ कोर्स यूज करते हैं, दैट हैज अ स्ट्रक्चर, करिकुलम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, लेक्चर्स के हिसाब से। जैसे एक माला है, उसको आप तोड़ देंगे तो कई अलग अलग हो जाएंगी, 108 कड़ियों का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, बट व्हेन दे आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए गार्डन, वैल्यूबल हो जाता है। तो यहाँ कोर्स की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज, ये बहुत पहले से चल रहा है। क्या है ऑनलाइन कोर्सेज की स्पेसिफिकेशंस? कि इसकी एक जियोग्राफिक बाउंड्री होती है, लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, ये बियॉन्ड कंट्री नहीं आता है, नॉट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बुक्स, क्या मतलब है इसका? मैसिव मीन्स व्हाट? Where there is a massive number of registration, maybe in thousands, maybe in lakhs, and that will cross the boundary of a nation. The course in the form of MOOCs, if you are developing it, any student from anywhere from abroad, they can register themselves for the certificate. Massive word. Open का मतलब इसके there is no any prerequisite qualification needed for joining such type of courses. एक हाई स्कूल का बच्चा भी अगर सोचता है कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स अवेलेबल है और मैं उसको क्वालिफाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, then he or she can register him or herself in that program. MOOCs में prerequisite qualification होगी। थर्ड होगा मतलब online means right from entry up to exit, right from registration till he or she gets the certificate, there is no need to come physical. C का मतलब course, course means structured course, structured is in nature. ये MOOCs का कॉन्सेप्ट कब आता है? दुनिया में 2008 में आ गया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लगभग थोड़ा बहुत अंतर था। बट इन इंडिया जब एनडीए गवर्नमेंट आई 2014 के बाद से, तो वहाँ कितनी ह्यूज पॉपुलेशन को हमको कैटर करना है, एंड ओनली थ्रू दीज ब्रिक एंड वॉल स्ट्रक्चर्स वी कैन नॉट एडमिट ऑल द एस्पिरेंट्स, दोज हु आर विलिंग टू जॉइन द मेन स्ट्रीम ऑफ द हायर एजुकेशन, और उनके लिए हमको कोई ना कोई एक वे आउट रखना पड़ेगा। तो हुआ कि भाई हम कम से कम 10 से 20% लोड, एनईपी भी कह रही है कि 10 to 20% लोड ऑफ द स्टूडेंट्स शुड बी शेयर्ड थ्रू ओडीएल सिस्टम, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के थ्रू हम शेयर करेंगे, क्योंकि वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ 145 करोड़ और मोर। सबको हम नहीं अकोमोडेट कर सकते, स्टूडेंट्स बहुत हैं, बहुत सारे लोग जॉब में हो सकते हैं, बहुत सारे लोग और कई जगहों पे इंगेज हो सकते हैं, और वो फुल टाइम आपके साथ नहीं आ सकते, तो उनका क्या दोष है? इफ दे वांट टू अपग्रेड देयर क्वालिफिकेशन, उनके लिए वे आउट। फिर आया ठीक है हम कोर्स बना लेंगे, बट चलेगा कैसे? ट्रेन हमने बना ली, उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, उसके लिए प्रक्रिया चाहिए, तो उसके लिए हुआ कि हमें अपना इंडिजिनस एक प्लेटफॉर्म डेवलप करना है। दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज ने तो कर रखी है, 2012-13 से ही दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अपनी कोर्सवर्क को बना के अपने प्लेटफॉर्म में तैयार करके अपने शोरूम को आपके सामने पेश कर दिया। हमारी यूनिवर्सिटीज कब जगेगी? हमारा कोर्सवर्क कब बनेगा? हमारे शोरूम कब सजेंगे? क्यों? क्योंकि अगर कोर्सवर्क का मतलब है कि अगर आपका कोर्स दिखाई पड़ेगा स्टूडेंट्स को, then only you will be able to attract the students. Otherwise, कहा किया जा रहा है कि even state universities are supposed to attract 10% foreign students, और आपकी क्या है ब्रांडिंग या शोरूम तो बंद पड़ी है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। एक शोरूम होता है तो कम से कम विंडो शॉपिंग करने में पहले बार जाते हैं कि घूम के देख लेते हैं, फिर मन हुआ कि अच्छा ये अच्छा लग रहा है ये खरीद लिया, लेकिन उसके लिए शोरूम तो चाहिए आपका, और हमारा शोरूम तैयार ही नहीं होता। इसके लिए भारत सरकार कह रही है कि आपके अपने शोरूम तैयार होने चाहिए, मीन्स आपको अपना कोर्सवर्क तैयार करके अपने पोर्टल पे रखिए। स्वयं तो एकमात्र एक आइडियल प्लेटफॉर्म है भारत सरकार का है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी यूनिवर्सिटीज के बाकी इंस्टीट्यूशंस नहीं करेंगी, सबको करना है, वरना हमारी स्थिति खराब होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि फॉरेन एजुकेशन प्रोवाइडर्स में जब 10 साल तक लगभग पेंडिंग रहा पार्लियामेंट में,
जब वो पार हो गया तो नाउ द फॉरेन यूनिवर्सिटीज आर विलिंग टू एंटर इनटू द मार्केट ऑफ इंडिया। इतना बड़ा मार्केट कहाँ मिलेगा, और ये बहुत बड़ा चैलेंज हम सबके लिए है। हमारे भी पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि एक फॉरेन यूनिवर्सिटीज है, स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि फॉरेन का ब्रांड है, और वो ऑफर नहीं है आपको कि 4 साल का ग्रेजुएशन है तो 3 साल हमारे यहाँ से कर लीजिए, 1 साल आपको हम इंटर्नशिप करा देंगे, और खुशी खुशी बेटा कि हमारा बच्चा जाने पे रिलाइज रहेगा, वो गार्जियंस भी रेडी रहेंगे। But what will happen to our institutions? तो उसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा, और इसी मोटिव के साथ इस टॉपिक को हम लोग आज उठा रहे हैं। तो भारत सरकार ने AICTE की सहायता से एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया जिसका नाम है स्वयं। स्वयं तो आप डायरेक्ट कभी जा नहीं सकते हैं अनलेस यू आर इनवाइटेड। आपको इनविटेशन कब मिलेगा, उसके लिए बातचीत करेंगे हम लोग। तो एक स्वयं एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, दिस इज अ टाइप ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी हैं अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल हमारा अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मॉडल है, मॉडल का नाम बार बार आएगा, बट दैट डज नॉट मीन ओनली मॉडल इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज अवेलेबल फॉर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। लेकिन मॉडल का ही एक इंडियनाइज्ड वर्जन है ये स्वयं। So if you are able to work on Moodle, then you will you can easily work on स्वयं। बट उसके लिए आपको अपनी क्षमता प्रूव करनी है, आपको प्रपोजल भेजना पड़ेगा। किसको? तो अभी आपको समझ में आया कि ऑन व्हाट इशू वी आर गोइंग टू टॉक। ये सब मैं इसके पता जाऊंगा बहुत सारी चीजें कि 2 वर्जन में हम नहीं इसके बारे में। ये सामान्य सी जानकारी है कि in spite of all these big and wide structures, we are not able to accommodate all the aspirants, and we need some additional support system. कि भाई हमें कहीं ना कहीं से ऑडियल सिस्टम और ऑनलाइन कोर्सेज तैयार करके उन लोगों को अकोमोडेट करना है कि those who are willing to join the university system or higher education system of our country. एक बात बार बार आती है ग्रास डेवलपमेंट रेशियो। ग्रास डेवलपमेंट रेशियो की बात तो अभी कितना है आपका 26-27% है। इतनी डेवलपमेंट के बाद भी आजादी के समय तो आपके पास 20-22 यूनिवर्सिटीज से आज 1200 से ज्यादा है। कितनी यूनिवर्सिटीज, कितने कॉलेजेस, कितने आपके NITs, कितने IITs, कितने IISers या IIMs? नहीं, अभी भी अगर हमको डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में आना है तो वी हैव टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन GER एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। चाहे आप एंशिएंट इंडिया की बात कर लीजिए, तक्षशिला नालंदा के जब वक्त था कि भारत दुनिया को रूल करता था, एक फेज आया जब हम वॉश आउट हो गए, और जब मुगल इन्वेजन का वक्त आया और यूरोप ने फिर से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस स्टार्टेड कमिंग अप, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, उन्होंने दुनिया को रूल किया। मॉडर्न एरा में बात करें 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी में तो यूएस इज रूलिंग द होल वर्ल्ड। दैट मींस देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द GER इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ कंट्री। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डायरेक्टली रिलेटेड। एक और जरूरत की चीज कि क्यों भारत के लिए जरूरी है कि भारत या आवर कंट्री इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री। एक स्टूडेंट की जब बैकग्राउंड, जब गांव का बैकग्राउंड से जब शहर में आता है, जब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आता है, तो एक भाषाई प्रॉब्लम उसके सामने खड़ा रहती है। आजकल का मैं आज से 20 साल पहले की बात बताऊं, 20 नहीं 40 साल पहले की, जब हम लोग एंटर हुए थे इन 80s, बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे थे लेकिन गाँव से थे, और जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आए, जब उनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आई तो बहुत सारे बच्चे फेल कर गए इन पेपर्स में। एंड मुझे याद है सिर्फ 13 बच्चे पास किए थे फर्स्ट ईयर में। टैलेंट की कमी नहीं थी, बट कंटेंट उनकी अपनी मातृभाषा में नहीं थी। बट ई कंटेंट अलाउज यू टू डेवलप ई कंटेंट इन वन लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो किसी भाषा में, और उसको वॉइस ओवर करके आप कई डिफरेंट भाषाओं में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेहनत एक बार, सपोज आई हैव डेवलप्ड अ कंटेंट इन इंग्लिश, उसको वॉइस ओवर तेलुगु में कर दीजिए, मलयालम में कर दीजिए, पंजाबी में कर दीजिए, उड़िया में कर दीजिए। With single one-handed effort, we can convert the content into different regional languages. And what's bad in it? अगर कोई स्टूडेंट अपने बैकग्राउंड से आता है तो वो उसको कंटेंट अपनी भाषा में भी अवेलेबल है, और एक हमारा जो कम्युनिकेटिंग मेन लैंग्वेज है कंट्री का अंग्रेजी, उसमें भी उपलब्ध है। तो ये कंटेंट आपको सहूलियत देता है, क्योंकि इतनी जो वर्सेटिलिटी है इस कंट्री में, इतनी डाइवर्सिटी है, वहाँ पे हम उसको अगर अपनी मातृभाषा में भी कंटेंट अवेलेबल कराएं
तो ये उसके लिए बहुत हितकर होगा। थोड़ी सी पृष्ठभूमि इसका मॉनिटर कहाँ से होगा, यहाँ से ना? आपको याद होगा कलाम साहब का नाम सब जानते हैं। हमने 79 में हमारा फेलियर था, SLV हमने लॉन्च किया, लेकिन अपने ऑर्बिट में नहीं गया, 80 में लॉन्च किया, सक्सेसफुल लॉन्च हो गया। फिर हमारी हिम्मत बढ़ती है साइंटिस्ट की, एक कदम जब आप आगे बढ़ाते हैं, सब सक्सेस मिलता है, तो आपका फिर मनोबल बढ़ता है। तो जब आपने सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, तब आपकी फिर यूजीसी ने सोचना शुरू किया कि अब टाइम है कि अब हम टेक्नोलॉजी को अपना एक अंग बना लें, और यूजीसी ने 1980 में सोचना शुरू किया कि सैटेलाइट्स कैन बी यूज्ड फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री। उसके बाद हम आ जाते हैं सीधा 2004 में। इस समय कलाम साहब वाज प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, और उन्होंने अपने मेंटोर सतीश धवन जी का सपना साकार किया। कैसे? उनकी सोच थी कि इस देश का एक अपना सैटेलाइट हो जो स्पेशली डेडिकेटेड हो इस देश के एजुकेशन के लिए, और एक रिसर्च वाज लॉन्च्ड। और कलाम साहब वाज बेसिकली एक टीचर, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे कुछ भी हो, एक बेसिकली दिल से वो शिक्षक थे, और इसलिए उन्होंने 5 सितंबर का दिन चुना, 5 सितंबर 2005 को एडुसेट नेटवर्क से 58 यूनिवर्सिटीज में कनेक्टेड। इसलिए कि एक जगह का ज्ञान दूसरी जगह से शेयर हो सके, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ रिसर्च, एक्सचेंज ऑफ एजुकेशन हो सके। और इतनी जब तैयारी हो गई, 2007 में पहली बार फ्लैश करता है न्यूज कि द कंट्री इज नाउ रेडी टू डेवलप ई-कंटेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट लेवल्स। अंडर ग्रेजुएट लेवल की कंटेंट डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है 2006-07 में। उसके बाद हुआ कि भाई एक नाम आपने सुना होगा, NMEICT, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। NMEICT का एक प्रोजेक्ट आता है, और उस समय एक ह्यूज फंडिंग की जाती है कि जो ई कंटेंट डेवलपमेंट की प्रक्रिया छोटे लेवल पे शुरू हुई थी, उसको एक फंड 700 करोड़ रुपीज वेर सैंक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट इन आवर कंट्री। 2007 के बाद फिर आया 2011, 4 साल बीत गया हुआ कि अब कंट्री को पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर भी सोचना चाहिए। ये सब हम 20 साल के लगभग पीछे की बात कर रहे हैं, और आज वर्कशॉप कर रहे हैं 2025 में। कहाँ? एक बड़े शहर, मेट्रो शहर में। So what to talk of state universities? And think of the day, what will happen when the foreign universities will enter in our country? उन कॉलेजेस, उन इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर चलने वाले विश्वविद्यालयों का क्या हाल होगा? वही हालत होगी जो आज प्राइमरी स्कूल्स की हम देख रहे हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स या जूनियर स्कूल्स की है, कि हम पढ़ाई के अलावा सारे काम एंगेज किए जाते हैं, राइट फ्रॉम मिड डे मील कराने से लेके पल्स पोलियो से लेके इलेक्शन कराने से लेके वो सारी चीजें। तो कहीं वो स्थिति फिर हमारे देश में हमारे अपने इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं हो जाए, क्योंकि आप रोक नहीं सकते। तो वो वेव है जो WTO के सिग्नेटरी होने के नाते आप किसी को आप रोक नहीं सकते, एंड दोज यूनिवर्सिटीज आर रेडी विद देयर इक्विपमेंट्स। हमारी हालत क्या होगी अगर हम तैयारी नहीं करेंगे? वो कविता सुनेंगे हम लोग सिर्फ एक खूब रंगी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, लेकिन अंत में शहीद हो जाएंगे। शहादत के लिए आप नहीं है, आपको उनको काउंटर करना है, और काउंटर करना है कैसे? कोर्सवेयर डेवलप करके। तो ऑल द यूनिवर्सिटीज और ऑल द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर एक्सपेक्टेड टू डेवलप ई कंटेंट इन देयर रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ एरियाज, जिसका जो भी स्ट्रेंथ एरिया है, और ग्रुप एफर्ट है। इंडिविजुअली आप नहीं कर सकते हैं विषय को, तो यार ग्रुप बना लीजिए, 4-5 लोगों का समूह बनाइए, यू मे बी हियर, समबडी मे बी समवेयर एल्स, लेकिन वो आपके संपर्क में तो होगा, आपके विषय का कोई व्यक्ति आपको जानता तो होगा, आप जहाँ से पढ़ के निकले होंगे वहाँ की आपकी एक टीम तो होगी। तो 4-5 लोगों को ग्रुप बनाइए, टीम बनाइए, एंड देन यू प्रिपेयर द प्रपोजल, सेंड इट टू द फंडिंग एजेंसी। और यहाँ फंडिंग एजेंसी को कहते हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर। कि नेशनल कोऑर्डिनेटर को आप एक प्रपोजल बनाते हैं, भेजते हैं, और कैसे भेजते हैं? तो एक प्रोमो वीडियो बनाई जाती है, जिसकी बात हम करेंगे 3 मिनट की, और उसमें वो सारी चीजें आप बताते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और फिर वो अप्रूव। तो 2011 में आया PG सब्जेक्ट्स का, उसके बाद हुआ कि सब हो जाएगा तो कैसे लोगों तक जाएगा,
तो युवा के लिए एंड्रॉइड डिवाइस ऐसे बनाई जाए जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को दिया जाए। लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से चेंजेस आते हैं और आज के टाइम में तो हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज ने बांटना शुरू किया, मतलब हर बच्चे के हाथ में एंड्रॉइड डिवाइस है जिसकी सहायता से वो उन चीज़ों को ले सकता है और कर सकता है। ये सारी तैयारी हो गई। तो 2016 में एक सर्कुलर आता है यूनिवर्सिटीज को कि नाउ यू प्लीज डेवलप बुक्स, क्योंकि अब हमें जो कि अब ये था कि हमको अब WTO के सेक्रेटरी होने के नाते अब उस यूनिवर्सिटीज को रोक नहीं सकेंगे। 2010 से बिल पेंडिंग थी और उस बिल को पास करना था, तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इससे बड़ा मार्केट कहाँ मिलेगा, रेडीमेड मार्केट। तो उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि बुक्स पे काम करना शुरू करिए और मोटिवेट करना शुरू किया। तो 2016 में हुआ कि बुक्स बनाए गए, फिर हुआ कि इसको चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो फिर हुआ कि AICTE की सहायता से MHRD ने एक प्लेटफॉर्म तैयार कराया कि हम स्वयं में सारी चीज़ों को डेवलप करके उस पर अपलोड करेंगे। तो ये एक कहानी का पक्षकार कैसे डेवलप हुआ है। कुछ लोग इसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, उन लोगों का नाम जस्ट ट्रिब्यूट पे लेते हुए इंदिरा गांधी, टीवी रिवोल्यूशन, फिर विक्रम साराभाई जो फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, सतीश धवन साहब जिनकी वजह से ये चीज़ें आगे बढ़ी, और कलाम साहब ने सपना देखा था कि जैसे एडुसेट जब फंक्शनल हो जाएगा देन वी विल हैव 72 चैनल्स। अगर सेकेंड टर्म मिला होता तो शायद हम 10 साल और पहले होते। उस समय सोचा था कि वी विल हैव 72 चैनल्स, नाउ वी हैव स्ट्रेंथ ऑफ मोर देन 1000 चैनल्स, कि जिस भी सब्जेक्ट का आप चैनल ऑन करिए, जैसे आपके एंटरटेनमेंट के चैनल्स होंगे वैसे कुछ चैनल्स होंगे, बट हु आर गोइंग टू डेवलप द कंटेंट? कोई 4% थोड़ी आएगा, वो आप और हम जैसे लोगों को तो करना है ना, तो हम लोगों को ये कंटेंट डेवलप करना है। वी कैन मीन्स द कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मीन्स ऑडियो विजुअल फॉर्म में। और तब जो सबने हमारे अंग्रेजों ने देखा था उसको पूरा करने के लिए यूजीसी ने फंडिंग करना शुरू किया और विश्वविद्यालयों में काम होना शुरू हुआ। उस समय माधुरी वेद साहब थे यूजीसी के चेयरमैन और रईस खन्ना साहब थे। तो जो सपना देखा गया था उनको पूरा करने का काम कैसे हुआ? फंडिंग से होगी, और फंडिंग देने वाली एजेंसी आपकी DST है, यूजीसी है और बाकी सारी एजेंसीज है। तो उन लोगों ने फंड करना धीरे धीरे शुरू किया और ये प्रक्रिया अब धीरे धीरे ट्रैक पे आनी शुरू हुई। और फिर एक प्रॉब्लम आई, आज आपके पास सारा एंड्रॉइड फोन है, सारी चीजें हैं, बट जब हम लोग स्टूडेंट थे, जब नई नई कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुई थी तो कवर करके रखी जाती थी, और जैसे कि आप आरती दिखा रहे हैं ना वैसे आरती भी दिखाई जाती थी। गाइड छूने नहीं देता था कि खराब हो जाएगा, मत छू। वो दौर था, चीजें हमारे कंट्रोल में थी, टेक्नो फ्रेंडली नहीं थी। तो यशपाल साहब विजनरी थे, उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी हमारे बॉलीवुड में है, बॉलीवुड इज नेक्स्ट टू हॉलीवुड, टेक्नोलॉजी वहाँ है बट टैलेंट इज विद अस। टैलेंट कहाँ है? हमारे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस और टीचर्स पे है। तो क्यों ना आपकी टेक्नोलॉजी और हमारा टैलेंट मिल जाए, देन वी विल बी एबल टू डेवलप ऑडियो विजुअल कंटेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स ऑफ दिस कंट्री। इस सोच के साथ फिर हुआ कि कैसे लोगों को ट्रेन किया जाए। तो एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर्स, EMRCs वर स्टार्टेड ग्रोइंग अप इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, नाम सुना होगा इसको। एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर्स कहते हैं, और सबसे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया में हुआ, गया में हुआ, ऐसे कई यूनिवर्सिटीज में हुआ। लेकिन अब इसकी उपाध्यता नहीं है, क्योंकि अब सब लोग, नई पीढ़ी अब टेक्नो फ्रेंडली हो चुकी है। तो अब इस तरह के नए सेंटर्स आपको सुनने को नहीं मिलेंगे, और ये जो हाँ है भी उनको बर्ज कर दिया गया कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में या किसी और डिपार्टमेंट। बस एक दो स्लाइड चैलेंज करने बताने के बाद तब हम 100 में से ज्यादा थोड़ा आपको मोटिवेट करना जरूरी है, थोड़ा आपको डर भी लेना चाहिए आने वाले समय के हिसाब से। तो कुछ इनिशिएटिव्स यूजीसी ने शुरू किया है, लिखा हुआ क्या है? रिसेंट इनिशिएटिव्स और इम्प्रूवमेंट्स इन हायर एजुकेशन। बट एज अ टीचर मैं इसको कहता हूँ, दीज आर चैलेंजेस विद अस। क्या चैलेंजेस है? किसी के लिए, चाहे मैं पब्लिक सेक्टर में हूँ, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, चाहे फॉरेन एजुकेशन प्रोवाइडर्स बिल पास होने के बाद फॉरेन यूनिवर्सिटीज का आना है, चाहे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया है रेडी, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से यूजीसी कह भी रही है अपने स्टूडेंट्स को कि 50% तक का क्रेडिट वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेके आ सकता है, और वो अपने उस क्रेडिट को अपने मार्कशीट में या अपने सर्टिफिकेट में ऐड कर सकता है। अब कुछ दिन को फिर सोचिए कि हमारी अगर स्ट्रेंथ कम हुई, हम लड़के पर मेरा कंट्रोल नहीं है, लड़का पे दो ऑन द प्लेटफॉर्म्स,
और अपने मनपसंद कोई कोर्स को करेगा एंड द क्रेडिट he or she will earn that will be added into her or his certificate. Means कि अगर हम कमजोर पड़े तो हमारी उपयोगिता खत्म हो जाएगी. Then what will happen? Hire and fire. जो foreign universities में appointments contractual, appointments tenurial. कि up to a particular period you will be appointed. And if you are found not fit, then you will be thrown out. क्योंकि आप जब हमारे लिए उपयोगी नहीं है, why you will be with us? तो ये हालात आएंगे बहुत जल्दी. 2030-35 तक तो बिल्कुल दिखने लग जाएंगे. आपका वक्त अब शुरू हो रहा है. हमारा वक्त अब खत्म होने के कगार पे है. 10 साल बचे. 25 साल पूरा कर लिया. 33वां साल है. 23 साल की उम्र में आ गए. चैलेंजेस विद यू पीपल. पहला फॉरेन एजुकेशन प्रोवाइडर्स में आ गया. फॉरेन यूनिवर्सिटीज अपने चैलेंज खड़े करने के लिए आ रही है. आप ही की एक बिल्डिंग होगी, आप ही के लोग होंगे, बहुत सारे लोग भी होंगे, उन्हीं को हायर करेंगे, यही भी उनकी क्लासेस या 2-3 साल जो हमने कहा जो भी वो क्रिएट करेंगे, कुछ ऑफर देंगे और आपका एडमिशन स्टूडेंट्स का उधर होगा. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चैलेंज कर रही हैं हमें, आपके लिए चैलेंज है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज. लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनको एट पार ला दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा. वर्तमान सरकार ने प्राइवेट एजुकेशन को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को एट पार ले लिया है. एंड देयर सर्विसेज, देयर लेंथ ऑफ सर्विसेज आर काउंटेड इन एनीवेयर. आप कहीं भी जाते हैं, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आए, GLA से आए, MIT से आए, एंड इस तरह से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से आए, एंड देयर सर्विसेज हैज बीन एडेड फॉर ऑल द बेनिफिट्स, for the promotion purpose, for other purposes. Means अब private और public का कोई difference नहीं है. There is no pension at all here or there in our institutions. The differences are. तो आपके लिए चैलेंज हम हैं, हमारे लिए चैलेंज आप हैं. 100 रुपया फंडिंग एजेंसी के पास थी तो 100 में आपको 30 आपको भी मिल रहा है, 70 हमारा रेट होगा. मीन्स अब आप प्रपोजल भेजते हैं तो आपको मिलेगा, आप प्रोजेक्ट भेजते हैं तो आपको मिलेगा. आपको तैयार होकर आगे बढ़ के अपने एफर्ट को बढ़ाना है और अपने आप को प्रूव करना है. तीसरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हमने कहा कि ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अब डेवलप होंगे. इस साल सर्कुलर आ गया कि द टॉप 100 यूनिवर्सिटीज आर गोइंग टू स्टार्ट देयर ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम 26 ऑनवर्ड्स. 2026 में 100 विश्वविद्यालयों को शुरू करना है ऑनलाइन कोर्स, कंपल्शन है. क्योंकि चैलेंज सामने दिख रहा है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज बस घुसने वाली है. कब तक आप उसको रोक रखेंगे? जैसे चाइनीज सामान को आप नहीं रोक सकते हैं, विश्व व्यापार के आप मेंबर हैं, वैसे ही उन विश्वविद्यालयों को जो बस टॉप 200 यूनिवर्सिटीज हैव बीन अलाउड टू एंटर इनटू द मार्केट, उसी को काउंटर करेंगे. जो टॉप 100 जो यूनिवर्सिटीज है रैंकिंग में, उनको कहा गया है कि यू हैव टू स्टार्ट ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम 2026. और इस तरह देख रहे हैं वर्कशॉप हमारी यूनिवर्सिटी में भी चल रहा है, और जगहों में भी चल रहा है. कोर्सेज रैंक करने की बात की जा रही है, अभी चल रहा था हमारे यहाँ किसी कई जगहों पर चल रहा है, क्योंकि अब डंडा पड़ रहा है. अभी तक चैलेंज नहीं था, निश्चिंत थे कि विल बी देयर टिल 65 और विल ऐड 5 इयर्स मोर. लेकिन वो टाइम गया, अब एक्सटेंशन भी नहीं मिल रहा, रुक गया. बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, बहुत सारी चीजें आ रही है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करनी चाहिए कि स्टूडेंट्स will be allowed to earn credits up to 50% of the content. हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं आया है यूजीसी के द्वारा कि क्या वो ऑनलाइन में हमारा मटेरियल अवेलेबल करने की बात की जा रही है कि क्रेडिट को ही ट्रांसफर करने की बात की जा रही है. इसकी क्लियर कट गाइडलाइंस और इंडिकेशंस. प्रोफेशनल प्रैक्टिस या लेटरल एंट्री आपके लिए चैलेंज हुई क्या कि एनीबॉडी फ्रॉम एनीवेयर कैन एंटर इनटू द सिस्टम. ऑटोनॉमी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है. What the hell you will do with this autonomy when you are not sellable in the market? If you have not developed your courseware, if you are not sellable in the market, आप इस autonomy के लेके करेंगे क्या? आपके यहाँ एडमिशन नहीं होगा, आपके यहाँ कोई आने वाला नहीं होगा, क्योंकि भाई हमको तो बिकाऊ सर्टिफिकेट चाहिए. अगर ब्रांड हमें दिखती है कि हम IIT से करके आ रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल हो जाता है, और हम कहीं और से आते हैं तो वो मार्केट में एंटर नहीं कर पाता. तो आपको अपनी क्रेडिबिलिटी डेवलप करनी जरूरी है उन इंस्टीट्यूशंस का. अदरवाइज many of the institutions will be shut down and they will close
इन नियर फ्यूचर। तो ऑटोनॉमी बहुत हमें खुश होने वाली स्थिति नहीं है। ऑटोनॉमी तो गवर्नमेंट चाहिए, कह लीजिए ऑटोनॉमी, अर्न योरसेल्फ, या आप उसका अर्निंग करिए, चीज़ों में मेंटेन करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए। आप तो बहुत लकी है, कितना बेहतर, इतनी एक खूबसूरत कैंपस है, इतना वेल डिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बैठे हुए हैं। और जगहों पे जाकर देखिए, जो पब्लिक सेक्टर की स्टेट यूनिवर्सिटीज है, न टॉयलेट है, न चलने की जगह है, न कुछ है, क्लासरूम्स नहीं है, प्रैक्टिकल रूम्स नहीं है, कई जगहों पे और भी उनके एंगेजमेंट्स हैं, कोई सुविधा नहीं है। किस तरह से वो चलेंगे, गॉड नोज उनके लिए क्या हालत होगी आने वाले दिन। और 93-94% लोड कहाँ है? स्टेट यूनिवर्सिटीज के साथ शेयर है। 4 to 5% लोड इज विद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बट आगे देखिए, इवन मुझे बड़ा अजीब लगता है कभी कहते हुए कि इवन एनईपी में ये एक्सेप्ट किया गया कि द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर रिसर्च फोकस्ड, द स्टेट यूनिवर्सिटीज आर टीचिंग ओरिएंटेड। पहले ही आप डिमांडेड क्यों कर दे रहे हो भाई? वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलप्ड नेशन बाय 2047। कैसे? बाय नेग्लेक्टिंग 95% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। क्या 4-5% लोड जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, उससे आप देश को डेवलप्ड नेशन में कन्वर्ट कर लेंगे? इज इट पॉसिबल? तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी लोगों को भी मोटिवेट करना है, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम सफेद हाथी की तरह खड़े हैं। विल बी सरप्राइज्ड व्हेन लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा हमारे यहाँ, पता नहीं कौन से पॉलिसी मेकर्स हैं, ऐसे पैसा फ्लोट कर रहा है जैसे लग रहा है कि पानी बह रहा है। एक हमारे महिला महाविद्यालय को 100 करोड़ रुपया दे दिया गया। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि हम घरे क्या खर्च कैसे करें। तो उखाड़ा जा रहा है, फिर से टाइल्स लगाई जा रही है, कुछ और हो रहा है। तो एक प्रॉपर जो डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का होना चाहिए, फंड्स का होना चाहिए for motivating all those 94-95% load of the students which is being shared by the state universities and their affiliated institutions. उनको भी आप जब खड़ा करेंगे, then only we can think of becoming a developed nation by 2047. Unless by just grooming the 4-5% students, those who are enrolled in central universities, we cannot think of becoming a developed nation by 2047. इसको छोड़िए। अब now coming to e-content. किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो मैंडेट है वो 3 मुख्य रूप से होता है। एक तो क्रिएशन ऑफ नॉलेज बाय डूइंग रिसर्च, दूसरा एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज, व्हाटएवर नॉलेज दैट इज अवेलेबल दैट शुड बी एक्सटेंडेड फर्दर। जो हम रिसर्च में करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, और जो गैप है अपने सिस्टम में या अपने जो सब्जेक्ट में, उसको हम आगे फर्दर कैरी करते हैं। और तीसरा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है डिसेमिनेशन। Unless the knowledge which is being generated in the institutions of higher education is distributed, that knowledge is of no use. आप 7 साल रिसर्च कर रहे हैं और वो 6 थीसिस के रूप में सिर्फ सबमिट हो जाए और उसको कोई पढ़ने वाला ना हो, तो क्या फायदा है इसे रिसर्च का? तो थैंक गॉड कि आप सोच गंगा आ गई, कि वो चीज़ें ऑनलाइन में अब दिखने लग गई और आपकी क्रिएटिविटी, आपका मेहनत हम लोगों के सामने जा रहा है। बट हमारे सब सामने जब हम लोग कर रहे थे, तो चलिए मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट था, वहाँ तो लाइब्रेरीज थी, बट स्टेट यूनिवर्सिटीज में या जहाँ फंड नहीं थी, वहाँ मॉइस्ट कंडीशन में डंप करके बोरों में थीसिस रखी जाती थी। क्या इसीलिए हमारे देश का युवा अपना 6-7 साल बर्बाद करता था कि उसकी बोरों में करके थीसिस को रख दी जाए? थैंक गॉड चीज़ें अब बदल गई। ई कंटेंट आपसे कोई नई एक्सपेक्टेशन नहीं करता है। आपसे कहता है कि जो आप काम कर रहे हो वही करो। आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, आप पेपर लिख रहे हो, आप थीसिस लिख रहे हो, या गाइड कर रहे हैं, या किताबें लिख रहे हैं, वही काम आपको यहाँ भी करना है। बट एक चीज कर दीजिए, क्या? जैसे आप शादी ब्याह में जाते हैं या किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, व्हाट यू नॉर्मली डू? एक गिफ्ट खरीदते हैं, उसको बढ़िया सा प्रॉपर पैकेजिंग करते हैं, और पैकेजिंग करके तब उसको आप प्रेजेंट करते हैं, तो वो अच्छा लगता है, एक्सेप्टेबल लगता है। कोई मेहमान आता है, आप थालियों में बढ़िया से उसको अगर सजा के देते हैं, तो दैट बिकम्स ए गुड। जाना तो एक ही पेट में है, सबको मिला के दे दो यार, क्या जरूरत है वैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की? वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सिमिलरली ई कंटेंट आपसे कहता है कि जो आप पेपर लिख रहे हो वो सब वैसे ही करिए, सब कुछ करिए, बस सिर्फ एक इनपुट ऐड कर दीजिए, वो है ऑडियो विजुअल। उसमें आवाज डाल दीजिए, उसमें गति डाल दीजिए, जो भी रेलेवेंट विजुअल्स है उसको कनेक्ट कर दीजिए, जो भी आपकी वॉइस है उसको भी डाल दीजिए, एंड दैट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू ई कंटेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट। तो ई कंटेंट कोई हुआ नहीं है, सिंपली पैकेजिंग ऑफ नॉलेज इज ई कंटेंट। और पैकेजिंग का मतलब है
उसको सजाना, उसको संवारना, उसको ऑडियो और विजुअल्स का ऐड ऑन करना। अब है कि ऑडियो विजुअल कितना परसेंट टेक्स्ट का, कितना परसेंट ऑडियो का, कितना परसेंट विजुअल्स का। अगर इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं होगी, उसके लिए कोई फ्रेम नहीं होगा, तो हजारों लाखों लोगों को करने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है ना। हर एक यूनिवर्सिटी, सैकड़ों यूनिवर्सिटीज है, सैकड़ों ऐसे हजारों टैलेंटेड लोग हैं, सब बनाने के लिए प्रोत्साहित किए जा रहे हैं। फ्रेम दिया जाएगा तभी उसमें क्या होगी कि वो चीज़ें फिट होंगी एक टाइम बाउंड तरीके से। अगर वो बनेगी कोर्स तो उसको करने के बाद एक डिफाइंड क्रेडिट वो अर्न करेगा एग्जाम देने के बाद, या उसको सर्टिफिकेट मिलेगी एक डिफाइंड क्रेडिट। तो उसको एक फ्रेम में, उसको एक गाइडलाइंस की तरह से बांधा गया है ताकि वो एक तरह का ही डेवलप हो हर जगह से जहां से भी बने। तो एक प्रोपोर्शन को ध्यान रखना है कि कितना ऑडियो, कितना विजुअल, कितना टेक्स्ट, कितने घंटे का प्रोग्राम हो, कितने घंटे का कोर्स हो। 4 क्रेडिट कहते हैं तो उसका मतलब क्या है, 1 क्रेडिट कहते हैं तो उसका मतलब क्या है। 1 क्रेडिट अगर स्टूडेंट के लिए होता है तो इसका मतलब है कि वो 13 से 15 घंटे का होगा, उसमें आधा ऑडियो विजुअल होगा, आधा रीडिंग मटेरियल होगा। लेकिन एक पेपर इज इक्विवेलेंट टू 4 क्रेडिट, 4 क्रेडिट इज इक्वल टू 13 into 4 12 घंटा, या मैक्सिमम 15 into 4 60 आवर्स। 60 आवर्स को डिवाइड कर दीजिए, हाफ रीडिंग मटेरियल, हाफ ऑडियो विजुअल, तो दैट विल बिकम एन कंटेंट ऑफ 4 क्रेडिट। और 4 क्रेडिट का मतलब हुआ कि अगर कोई एक पेपर उसको पसंद नहीं है आपके अपने सब्जेक्ट का, तो वो 4 क्रेडिट का कोई कोर्स कोई दूसरा पेपर रिवीजन करके उसको लेके आ सकता है। ये होता हुआ तो क्रेडिट अर्न करने की लिबर्टी अब स्टूडेंट्स को दे दी गई है। ये समझ में आया? ये कंटेंट का कोई हुआ नहीं है, कुछ नहीं है। आप जैसे पेपर लिखते हो, जैसे थीसिस लिखते हो, जैसे किताबें आप सोचते हो लिखने के जीवन में, सब कुछ वैसे ही करना है। सिंपली आप इसमें ऐड ऑन कर दीजिए। कैसे? एग्जाम्पल, कोई एक्सपेरिमेंट आप बीएससी में करा रहे हैं, कोई एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आपने उसका रिकॉर्ड कर लिया कि दिस इज अ फैक्टर व्हिच इज गोइंग ऑन, कर लिया। उसके बाद उसको पीपीटी बनाइए और अपना वॉइस में बता दीजिए कि व्हाट द प्रैक्टिस इज बीइंग डन, कि इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। 2-3 मिनट में आप पीपीटी के माध्यम से उसको वॉइस भी कर दीजिए, तो ये आपका ओरिजिनल एक कंटेंट बन गया। उसके बारे में लिख दीजिए, टेक्स्ट भी रहेगा जैसे टेक्स्ट मटेरियल होता है। तो पहले की जो किताबें थी, पहले के जो पेपर्स थे, उसमें रिटन मटेरियल होता था, स्टैटिक फिगर होता था, फोटोग्राफ। लेकिन यहाँ जो फोटोग्राफ है वो मूव कर रहा है। यहाँ आवाज नहीं थी, अब आवाज भी है। आपको अपना वॉइस नहीं पसंद आ रहा है कि हमारी फ्लुएंसी में प्रॉब्लम है, मेरा फ्रेंड तो खड़ा है, यार भाई वॉइस ओवर कर दो। नहीं कर सकता है, वो भी अवेलेबल है रेडियो। जैसे रेगुलर प्लेटफॉर्म पे जब वॉइस ओवर हो सकता है और एक ही भाषा में हर जगह हो सकती है, वो किस पे हो रहा है? स्लाइड एंड टेल से हो रहा है। देश में जितने रेगुलर प्लेटफॉर्म है, रेगुलर जहाँ जहाँ आवाज लिखी आती है, दैट इज अ स्लाइड एंड टेल सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो उसको वॉइस ओवर नहीं कर देगी, लेकिन अपने बीच से कर दे, ज़्यादा अच्छा है। तो ये एक कंटेंट का मतलब था, इसके बारे में हम लोग बात करें। अब ये कंटेंट का बहुत कम है। इन कंटेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एकेडमिक कंटेंट जिसमें टेक्स्ट मटेरियल है, और ये उसके लिए है दोज हु आर नॉट टेक्नो फ्रेंडली, उनके लिए अभी प्रपोजल में या बजट में एक रहता है कि आप इसको बाहर से करा लीजिए, आप एक्सपर्ट टीम हायर कर लीजिए। अब तो हर यूनिवर्सिटीज में स्टूडियो है, हर अच्छे कॉलेज में स्टूडियो है, और शहर में जितने भी शादी ब्याह की रिकॉर्डिंग होती है उनके पास अच्छे कैमरा है, अच्छे रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, ग्राफिक इक्वलाइजर है, आप उनकी सहायता ले सकते हैं क्योंकि प्रपोजल में प्रोजेक्ट सैंक्शन है। इफ यू आर एबल टू डू, कोई जरूरत ही नहीं है, आप अपनी यूनिवर्सिटी में रिकॉर्डिंग करा लीजिए, घर में बैठ के कर लीजिए। 3 ऑप्शंस हैं। आप घर बैठ के अपने लैपटॉप में भी प्रैक्टिस करने के लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी सॉफ्टवेयर से नाम भी नहीं होगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अदरवाइज गो टू स्टूडियो, आप लैपटॉप पे अपना पीपीटी बनाइए, बोलिए और उसको बोलिए कि वो रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने के बाद उसको आप पीपीटी दे दीजिए, वो मर्ज कर लेगा, उसको एडिट करके आपको वापस कर देगा। नहीं आपके शहर, आपके यूनिवर्सिटी में है, गाँव में है, किसी छोटे कॉलेज में है, जितने भी ये सब जो प्राइवेट लेवल पे काम कर रहे हैं, मैं आपके लिए, मैं उनकी कह रहा हूँ 2 अलग कैसे लोग बहुत सारे
कहीं जहाँ नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा, मैंने पहले ही अप्रिशिएट किया कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेयरली कहेंगे, यू आर फॉर्चुनेट दैट यू हैव अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर हियर। तो अब वो वहाँ से भी उसको रिकॉर्डिंग करा सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है कैसे भी करें। सेकेंड है, ये कंटेंट को दोनों तरह का हो सकता है, एक एसेंबल कंटेंट भी हो सकता है। यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ क्या है, ये मेरा ओरिजिनल कंटेंट है, मेरा कोई रिसर्च वर्क नहीं है, ये मेरा अनुभव आधारित शेयरिंग है। वॉट एवर आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन द लास्ट 20 years, राइट फ्रॉम 2006 to 2025, और इसी कारण में मुझे काम नहीं मिला। I got the National Resource Center, I got the fund for the development of courseware for the students of geology, geography and geophysics. तो ये assembled form the content. I have compiled the things, taking them from different sources, और उसको आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर ये मेरा रिसर्च वर्क होता, मेरे अपने लैब का होता, मेरा स्टूडेंट का किया हुआ काम होता, मेरा काम होता, तो जैसे आप पेपर लिखते हैं तो अपना काम भी होता है, और साथ में कंटेम्पोररी जो लोग काम कर रहे हैं उनके पब्लिकेशंस का भी रेफरेंसेस हम व्यवहार करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, वैसे इन चीज़ों को भी हम उसमें ऐड ऑन करके बनाएंगे। तो इसको कहेंगे ओरिजिनल कंटेंट या क्रिएटेड कंटेंट। और इसके लिए प्रपोजल ज़्यादा पैसे आपको मिलते हैं, उसमें थोड़ा सा उसका अमाउंट कम हो जाता है। लेकिन आपको कंटेंट कैसे भी बना सकते हैं, ऐसे बनाना है जैसे आप कैसे बताओ, फिल्म में बनाने वाले डायरेक्टर को आप इमेजिन करिए, वो एक्ट नहीं करता है, इमेजिन करता है, थॉट प्रोसेस में है उसके कि मुझे किस एक्टर से किस एक्ट्रेस से कितना काम कराना है, कितने गाने डालने हैं, कितना उसमें विजुअल्स डालना है, कितना ऑडियो डालना है, क्या डायलॉग्स होंगे, कितने गाने होंगे। सिमिलरली you think that you are the director of a film which is of half an hour या 1 hour, एक मॉडल half an hour का होता है। तो मैं आपको असाइनमेंट जैसे देता हूँ किसी को कि भाई आपको आधे घंटे का ये कंटेंट बनाना है, आप अपने सब्जेक्ट एक लेक्चर जरूरी नहीं कि आधे घंटे में खत्म हो सके, तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करते हुए उसको आधे घंटे के हिसाब से एक्सटेंड करते रहेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि आधे घंटे से ज़्यादा आप किसी को बांध के नहीं रख सकते, मुश्किल होता है बांधना। और ये वर्चुअल मोड में, फेस टू फेस में अलग की बात होती है, क्या आप आई टू आई कॉन्टैक्ट है, बॉडी लैंग्वेज है, मूवमेंट्स है, इवन आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। बट वर्चुअली व्हेन यू आर प्रेजेंट देन द कंटेंट शुड बी ऑफ हाफ एन आवर अप्रॉक्सीमेटली, हम उसको एक मॉडल। तो थिंक योरसेल्फ एज अ डायरेक्टर हु इज गोइंग टू प्रिपेयर अ फिल्म फॉर द स्टूडेंट्स, और वो फिल्म आधे घंटे का है, तो आप सोचिएगा कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे डालें, कुछ कीवर्ड्स हो, कुछ टेक्स्ट मटेरियल हो, इंट्रोडक्शन हो, फिर कंटेंट के बारे में हो, कुछ फिर उसके बाद समरी हो, अगर साइंस है तो मटेरियल मेथोडोलॉजी भी कुछ बातें हो लिखी, और कुछ ग्राफ हो, कुछ प्लॉट्स हो, और इतने में आधे घंटा निकल जाएगा। एक बेसिक टाइप का आपका ये कंटेंट ऐसे ही सोचेंगे ना आप। अगर आपका लंबा लेक्चर है 10 12 सीरीज का, तो सीरीज में 1 2 3 4, तो उसको आप डिवाइड पहले से कर लेंगे और उसको फिर आप उस हिसाब से बनाएंगे। तो ये दोनों हो सकता है, ओरिजिनल या आपका असेंबल्ड। कोई बच्चा आपसे पूछे, स्कूल में है आपने, कि ई कंटेंट का मतलब क्या है, क्या मैं जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहा हूँ वेदर दिस कैन बी कॉल्ड एज ए कंटेंट और नॉट। यस, दिस इज आल्सो ए कंटेंट, लेकिन ये एक सिंपलेस्ट टाइप का कंटेंट है, इसको टेक्स्ट टाइप का कंटेंट कह सकते हैं, बिकॉज टेक्स्ट इज डोमिनेटेड, टेक्स्ट इज डोमिनेटिंग। आपका मन नहीं भरा, अरे यार इसमें विजुअल्स होना तो मजा आता है, ये लिबर्टी हमारे टाइम में तो थीसिस के समय में नहीं थी, ये तो पिछले 10-15 सालों से आई है। सो यू पीपल आर मोर फॉर्चुनेट देन अस, व्हेन वी वर डूइंग पीएचडी वी डिड नॉट हैव एनी ऑप्शन सच टाइप ऑफ ऑप्शन, जहां आपको अपनी उड़ान को भरने के लिए पूरी स्वतंत्रता है, स्काई इज द लिमिट, कि कितना हम ऑडियो डालें, कितना विजुअल डालें, और ऐसा डालें कि इसको एक बार कोई क्लिक करे मेरा लर्नर तो वो उसको आधे घंटे पूरा करने के बाद ही छोड़े। जैसे कोई अच्छी फिल्म होती है तो चाय भी होता है तो आप मंगा लेते हैं, बोलते हैं मैंने तो चाय यही मांगा, और फिल्म को पूरी कवर करते हैं। वैसे ये कंटेंट का एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको अपना विषय आता है, अगर आपने अपने विषय को आत्मसात किया है, आपको समझ में आ रहा है, विषय को समझना अलग की बात होती है। हम लोग भी जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में थे तो पास तो कर गए, लेकिन समझ में तब आया जब पढ़ाने उतरे, जब क्लासरूम टीचिंग ले गए तो समझ में आया कि अच्छा ये है,
उसने नहीं समझ आया था, रट लिया था। तो अगर आपने अपने विषय को आत्मसात किया है, समझ आया है, देन यू कैन प्लान, आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि मुझे अपने ऑडियंस को, मुझे अपने लर्नर को कितना क्या पोर्शन देना है ताकि उसको मजा आए, उसको अच्छा लगे। और वही तो आप बुद्धि के डायरेक्टर भी होते हैं फिल्मों में। सो हियर यू आर एज अ डायरेक्टर ऑफ द कांसेप्ट और द थीम ऑन व्हिच यू आर गोइंग टू डेवलप ये करना है। वही हमने कहा कि इसको कहेंगे, उसमें विजुअल्स है, पॉपअप्स है, एनिमेशन है, साइमुलेशन है। नो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमेशन एंड साइमुलेशन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? Simulation is a real time presentation. Simulation और वो आपका एनिमेशन है, वो एक पूरी प्रोसेस को आप दिखा सकते हैं। बट यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दिस इज ये साइमुलेशन प्रोसेस। एनिमेशन में है कि आप उस प्रोसेस को अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं। तो ये सारी लिबर्टी अब आपके पास है, ये सुविधा पहले कहाँ थी? तो आपको तो गेम खाली खेलना है और खेलते खेलते आपको अपना अर्न करना है। और इसकी बेनिफिट क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस में बेनिफिट है, प्रमोशन में बेनिफिट है, और जितने भी फॉर्म आप भरते हैं सब जगह आ गया कॉलम ई कंटेंट डेवलपमेंट का कि आपने क्या काम किया है, ये कंटेंट को डेवलप किया है कि नहीं किया है। और एक कॉमन क्वेश्चन आजकल के इंटरव्यूज में है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू हैव इन योर वर्चुअल क्लासरूम? व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल क्लासरूम? डू यू हैव एनी वर्चुअल प्लेटफॉर्म और नॉट ऑफ योर ओन? जैसे होता ना खान सिटी, वो एकेडमी, फलाना सिटी, वो फिजिक्स, फलाना सिटी, वो केमिस्ट्री। Because of their branding, because of their effort, they have been able to convince the students, yes, this is what you want, और स्टूडेंट्स भी उसके साथ आकर्षित होते हैं। तो वैसे ही आपका अपना एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म इंडिविजुअली हो सकता है और इंस्टीट्यूशन का भी हो सकता है। स्वयं का मतलब ये नहीं है कि इस संगीत का अपना एक प्लेटफॉर्म नहीं हो। जैसे हमने नाम लिया था अभी कुछ समय पहले मैडम से कि एक विनिता सिंह है, जैसे IIT कानपुर में, वो का प्लेटफॉर्म है, उसको वो वहाँ मैनेज करती है, 2-3 लोग और वो किक नाम से वो प्लेटफॉर्म है। तो उस बकेट में एग्रीकल्चर का भी कंटेंट दे सकते हैं, ह्यूमैनिटीज का भी कंटेंट दे सकते हैं, उनका IIT का तो इंजीनियरिंग का कंटेंट होता ही है। तो ऐसे सारे इंस्टीट्यूशंस को करने के लिए लिबर्टी है। वो एक IIT और IITs के लिए ही नहीं है ऐसा खुला हुआ है, सारे यूनिवर्सिटीज के लिए भी द्वार खुले हुए हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज सोई हुई है, IITs तो फिर भी काफी आगे बढ़ के अपना काम को कर रहे हैं। बट व्हेन वी विल बैक, हमारी जो 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 जनरल एजुकेशन वाले जो ब्रांचेस हैं या जो लोग हैं, उनको जनना होगा। अदरवाइज सारी यूनिवर्सिटीज खड़ी है, कोर्स में खुला है, जाए के लड़का देखेगा कि ये कोर्स है, इस कोर्स में ये लेक्चर्स हैं, ये उसके टीचर्स हैं, एक सैंपल के लिए उसने क्लिक किया, देखा, अरे अच्छा लग रहा है, तो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन वहाँ होगा और आपकी अर्निंग रुक जाएगी। आपकी अर्निंग तब होगी, यू हैव टू अट्रैक्ट not only your own students but also foreign students. Why something will be at a single place? Why it will not be at other places also? जैसे BHU, why BHU will be only in Varanasi? हमारा अपने कैंपस का होगा, बाकी वर्ष का होगा। लेकिन अभी हम लोग एक नशे में हैं, सोए हुए हैं, और जब चैलेंज खड़ा हुआ then we will think of that. टेक्स्ट है, वीडियो है, PowerPoint प्रेजेंटेशन है, everything can be added to make your content as lucrative as you wish. कुछ गाइडलाइंस छोटी-छोटी के बीच में आती रहेंगी। अब आया कि फॉन्ट्स कौन सा डालें, किस तरह का फॉन्ट को यूज करें। तो फॉन्ट्स में कहा गया कि आप जब टेक्स्ट उसमें डालें तो वो टाइम्स न्यू रोमन का हो या एरियल का हो, और 11 to 12 साइज का फॉन्ट यूज करिए। सिंगल लाइन स्पेसिंग करिए, यूनिफॉर्म साइज के स्टाइल के फॉन्ट्स यूज करिए ताकि डाइवर्जन ना हो, आंखों में प्रेशर ना पड़े, आंखों में जोर ना पड़े। और एक मॉड्यूल में 3000 से 5000 वर्ड, 3500 वर्ड के आसपास हो, मतलब करीब 15 से 20 पेजेस के लगभग कंटेंट हो लिखित। अब ये तो एक मीडियोकर स्टूडेंट के लिए है जिसको सर्टिफिकेट लेना है, पास करना है, निकल जाना है। लेकिन बहुत सारे सीरियस स्टूडेंट भी होते हैं, उनको और भी रीडिंग की जरूरत होती है, और भी चाहते हैं कि मैं ज्यादा पढूं, तो उनके लिए फर्दर लिंक डालिए। If you want to go ahead, if you want to know more and more, आप और लिंक करिए और पढ़िए, और उसमें आप PPTs वो डालिए रेलेवेंट, और भी अपने लेक्चर्स डालिए, जो भी रेलेवेंट PPTs हैं या जो मटेरियल है अवेलेबल बाहर का भी, उसको भी डाल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट के साथ, प्रॉपर रेफरेंस के साथ। और जो 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 लाइसेंसेस हैं वो आपको परमिट करते हो उसको यूज करने का। लाइसेंस कौन देता है? तो देयर इज एन एजेंसी जिसकी बात हम लोग करेंगे, क्रिएटिव कॉमन्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन, नो प्रॉफिट
नो लॉस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच गिव्स डिफरेंट टाइप ऑफ 6 टाइप ऑफ लाइसेंसेस, और उसको देखने के बाद यू कैन यूज दैट। फिर वहाँ के फॉर्मेटिंग कैसे होनी चाहिए, तो बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं हो, क्योंकि फिर लड़का पढ़ेगा नहीं उसको। मान लीजिए अभी वो पढ़ रहा है और वो ऑटो चलाता है, उसको कहीं से आ गया कॉल किए, चलो ओला का ड्राइवर है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम MBA करें, उसकी इच्छा है वो कर सकता है, तो उसके लिए बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ रहेगा, तो शायद वो स्टार्ट नहीं कर पाएगा। छोटे छोटे टुकड़ों में रहेगा, जैसे किसी ओपन या डिस्टेंस लर्निंग मोड की किसी बुकलेट को देखिए आप, इग्नो के देखिए, तो सब सेक्शन सब सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, 6-7 लाइन से ज़्यादा नहीं होता है एक एक, तो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको करके ब्रेकअप में रखिए, ताकि वो जब चाहे छोड़ सके, जब चाहे फिर से उसको स्टार्ट कर सके। तो ये उसके टेक्स्ट या रीडिंग मटेरियल का फॉर्मेट है। ये कंटेंट डेवलपमेंट में टेक्निकल भाषा में इसको समझाने के लिए ये कहा गया कि एक 4 क्वाड्रेंट अप्रोच है, बट सामान्य भाषा में मैं बात करूँगा, इसको बहुत कोई समझने का बहुत कोई बड़ा कोई ज्ञान नहीं चाहिए। 4 क्वाड्रेंट अप्रोच या इसको बोल सकते हैं 4 फोल्डर अप्रोच है। एक आप सर्कल बनाइए, 4 हिस्सों में बांट दीजिए, तो एक क्वाड्रेंट क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वीडियोस डालिए, वो वीडियोस आपका अपना बनाया हुआ लेक्चर भी हो सकता है, साथ में जो अवेलेबल वीडियोस हैं, रेलेवेंट वीडियोस हैं, दैट कैन आल्सो बी एडेड। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज फॉर विजुअल्स। तो जैसे आप पेपर लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, फर्स्ट आप करते ही क्या है, अब इकट्ठा करते हैं ना, बहुत सारे पेपर्स को डाउनलोड करते हैं, रेफरेंसेस लेते हैं, जो जो चीज़ें होती हैं उसको जोड़ते हैं, एक्नॉलेज करते हैं या रेफरेंसेस देते हैं, और तब आपका पेपर कंप्लीट होता है। तो पहले इकट्ठा कर लीजिए, उसको एक जगह इकट्ठा करके आपने रख दिया। दूसरा फोल्डर है जिसमें आपका रीडिंग मटेरियल होगा। वो रीडिंग मटेरियल क्या होगा, आगे स्लाइड में और विस्तृत रूप से मैं बताऊंगा कि वो पेपर हो सकता है, वो PPT हो सकता है, उसमें आप भूमिका बनाएंगे, जैसे आप किसी आधे घंटे का मॉड्यूल दिया, पूरा लेक्चर लंबा है, तो उसके बारे में बताइए ना कि इंट्रोडक्शन ये है, उसके बाद इसका कंटेंट ये है, उसके बाद उसकी ये समरी है, कुछ ग्राफ प्लॉट, ये सारी चीज़ें जो भी होंगी वो रीडिंग मटेरियल में आएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप रीडिंग मटेरियल आप रखेंगे। उसके बाद एक कहलाता है डिस्कशन फोरम। डिस्कशन फोरम का मतलब कि आप जब ये कंटेंट बना रहे हैं, मान लीजिए 5 लोगों की ये टीम है, 5 लोगों ने इकोनॉमिक्स का एक कोर्स तैयार किया, तो कोर्स तैयार होने के बाद उसमें लड़का रजिस्ट्रेशन भी करेगा। लड़का जब रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसको कुछ क्वेरीज भी होंगी, उसके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, तो उन क्वेश्चंस या क्वेरीज को शॉर्ट आउट करने के लिए आपको एक निश्चित समय पे उपलब्ध रहना पड़ेगा। तो आप कर दीजिए कि वीक में हम वीकेंड में सैटरडे को 4 से 6 बजे रहेंगे, वर्किंग रहेंगे, या जो भी आपको सूट करता हो, आप एक फिक्स टाइम पे अवेलेबल रहेंगे और इसको डिस्कशन के लिए आप अलॉट करते हैं, व्हिच इज नोन एज डिस्कशन फोरम। अब किसी को सर्टिफिकेट या कोई सर्टिफिकेट देना हो तो आपको इवैल्यूएट भी तो करना है, बिना एग्जाम दिए हो तो आप इवैल्यूएट अगर तो उसको देंगे नहीं। तो इवैल्यूएशन के लिए भी बहुत सारी तरह से इवैल्यूएट कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस दे सकते हैं जिसको लिखने में 2 मिनट से ज़्यादा वक्त न लगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी दे सकते हैं जिसमें 500 वर्ड तक को 10 मिनट में लिखा जा सके। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे सकते हैं, मैच करा सकते हैं, फिल द ब्लैंक्स दे सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ग्रुप। विषय को आप जानते हैं, जिस विषय का आप तैयार करें वो विषय का एक्सपर्ट जानेगा। मैं अपने विषय में जानूंगा, तो ये मुझे कैसे इवैल्यूएट करना है वो मुझे तय करना है, हमारे टीम को तय करना है। तो वो कहलाता है 4 क्वाड्रेंट फॉर असेसमेंट। और अप्रॉक्सीमेटली ये टाइम रखा गया है कि इसमें इतना समय के आसपास ये कवर चीजें हो। तो ये हुआ 4 क्वाड्रेंट अप्रोच। ये चाहे मॉडल कोई भी आप सॉफ्टवेयर पे हैंड्स ऑन कर सकते हैं। बार-बार मैं मॉडल लेता हूं, दैट डज नॉट मीन ओनली मॉडल इज देयर, नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल, बट मॉडल को चूंकि हम लोगों ने किया था प्रैक्टिस फ्लो में, बाद में स्वयं ले गए तो लगा कि मॉडल बड़ा हैंड्स ऑन करने में इजी है और मॉडल और उनको में सिमिलरिटी बहुत है। मॉडल 200 MB का स्पेस आपको देता है और 200 MB में आप जितने सारे वीडियोस हैं सब कुछ डाल सकते हैं। कैसे? 200 MB और 10, 20, 50 भी वीडियोस आप डाल सकते हैं, वो सब यूट्यूब में रहेगा। सिर्फ लिंक आप कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे और वो लिंक क्लिक करते ही क्लाउड में आपका मटेरियल है, वीडियोस है, वहां से डालोगे, आपका कोई स्पेस नहीं जाएगा। तो ये 4 क्वाड्रेंट अप्रोच कहलाता है। स्वयं पे आप चाहे किसी भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे जाए, आपको 4 क्वाड्रेंट अप्रोच में इसको डेवलप करना है। इसी को थोड़ा विस्तृत रूप से हमने बताने के लिए कहा हुआ है, जो हमने बोला है उसी को यहाँ लिखा हुआ है कि क्वाड्रेंट 1 में वीडियोस वगैरह हो,
सेकंड में हमने कहा रिटन मटेरियल हो, कोई रिसर्च पेपर डाल सकते हैं, कोई जर्नल हो सकता है, कोई आपको ये ई बुक हो सकता है, इसमें नहीं कर रहा व्हाइट ये रेफरेंसेस हो सकता है, वेब लिंक दे सकते हैं, रीडिंग दे सकते हैं, कोई पीडीएफ फॉर्म में कोई पेपर है वो डाल सकते हैं, जो कुछ भी लगता है पढ़ने लायक है उसके काम का है उन सबको आप डाल सकते हैं। सबका लिंक डालना है, सबको आपने इकट्ठा किया कोर्स चालू करने के पहले, कोर्स स्टार्ट करने के पहले सारे चीज़ों को इकट्ठा कर लिया, रिटन मटेरियल हो गया, क्वाड्रेंट फिल्म हमने बताया था कि इवैल्यूएशन की टेक्निक्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, वो एमसीक्यू हो सकता है, मैच करना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और डिस्कशन फोरम, ये आपका हो गया ये 4 क्वाड्रेंट अप्रोच ऑफ ई कंटेंट डेवलपमेंट प्रोसेस। ये क्लियर है? सामान्य बच्चे को बताने के लिए कि ई कंटेंट को आपको समझाना होगा, क्या उसको बोले, कैसे बताएं। तो अब वो लिबर्टी है जो पहले लिबर्टी नहीं थी। जैसे अगर घोड़े को बताना है, पहले की किताब थी तो घोड़ा की पिक्चर लगी रहती थी, घोड़े के बारे में लिखा रहता था एक पैराग्राफ, लेकिन आज का घोड़ा वो चलेगा भी, बोलेगा भी, आवाज भी देगा, टेक्स्ट भी रहेगा। तो बच्चे को पढ़ना भी है, देखना भी है, आवाज भी सुनना है कि उसकी आवाज कैसी होती है, और जो चीज हम सुनते हैं, जो चीज हम देखते हैं वो हमें लंबे समय तक याद होती है। जो फिल्म में आपको अट्रैक्ट की होंगी बहुत लंबे समय तक आज तक याद होगी। हो सकता है क्लासरूम में जो आपको सुना होगा भूल गया होगा। तो विजुअल्स का ये महत्व है क्योंकि कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव, एंड वंस द कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव द नॉलेज विल बी कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज? वो नॉलेज जो सिर्फ दिमाग में ना रहे बल्कि उतर के दिल तक चला जाए और लंबे समय तक याद रहे। और यही एक टीचर की खासियत होनी चाहिए। व्हेनेवर यू आर इन द क्लासरूम, आपको उसको माइंड वही नहीं भरना है बल्कि आपको उतर के दिल तक पहुंचना है। तब वो आपको 10 साल बाद भी मिलेगा, रास्ते में तो पैर छू के प्रणाम करता है कि गुरुजी आपका वो हमने पढ़ाया था, आपको याद रखा है। तो टेक्स्ट भी दे सकते हैं, ऑडियो दे सकते हैं, स्टिल इमेज दे सकते हैं, वीडियो फुटेज यूज कर सकते हैं, उसको इंटरैक्टिव बना सकते हैं जैसे भी चाहे, साइमोनिशन यूज कर सकते हैं, एनिमेशन यूज कर सकते हैं। सब आपके पास लिबर्टी है, जो लिबर्टी पहले के ऑथर के पास, पहले के लोगों के पास नहीं थी, पर आज की पीढ़ी के पास ये स्वतंत्रता है, ये हमारा लिबर्टी है कि वो उसको जैसे चाहे उसको वो यूज करे। स्पेसिफिकेशन हमने बता दिया कि आपका नॉलेज कॉम्प्रिहेंसिव होता है, कम्युनिकेशन जब इफेक्टिव हुआ तो वो नॉलेज आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और गवर्नमेंट का क्या फायदा है? गवर्नमेंट का फायदा ये है कि नॉलेज रिपोजिटरी क्रिएट हो रही है। स्वयं क्या है? स्वयं इज अ रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कंटेंट को बना के लगातार डाला जा रहा है, और रिव्यूड कंटेंट है। द कंटेंट व्हिच आर बीइंग डेवलप्ड बाय एक्सपर्ट्स, वो चाहे बनारस का हो, चाहे इलाहाबाद का हो, चाहे कोई कहीं का हो। क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटी में उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है तो वो स्वयं पे ट्राई कर रहा है, या बुकिट पे ट्राई कर रहा है, आईआईटी कानपुर वाले पे, या और भी ऐसे एनपीटीएल पे ट्राई कर रहा है। तो आपका अपना रहेगा तो हम अपने पे करेंगे, राइट? तो ये तो ऐसी रिपोजिटरी क्रिएट आपको करने के लिए सोच रहा है जो सबके द्वारा एक्सेसिबल हो और कई रास्तों से एक्सेसिबल हो। इंटरनेट के द्वारा एक्सेसिबल हो, एजुकेशनल टेलीविजन के माध्यम से, चैनल के माध्यम से एक्सेसिबल हो, एडुसेट के माध्यम से उसको आप क्लासरूम जैसे टीचिंग करते हैं साइमल्टेनियसली एक साथ हम चला सकें, उससे अवेलेबल हो, या किसी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से अवेलेबल करा सकें। इसमें रिकॉर्डेड मटेरियल है, उसको रात में टाइम मिला, 12 बजे काम से आया तो रात में उसको देख लिया, पढ़ लिया, खोल लिए। तो वो नॉलेज रिपोजिटरी जो क्रिएट होगी वो सबके लिए एक्सेसिबल होगी, कभी भी कहीं से किसी भी समय। तो आज का तो टाइम नहीं है कि अब ना तो 100% फेस टू फेस अब संभव ही नहीं, वो वक्त गया। अब हाइब्रिड मोड में उतरना ही उतरना है ना, 100% हम ऑनलाइन में भी ले चल सकते हैं क्योंकि उससे भी चीजें आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगी। तो अब सिंक्रोनस जैसे अब जूम पे, गूगल मीट पे सारी आजकल सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस और क्लास भी चल रही है, तो वो सिंक्रोनस है। ऑफलाइन सिंक्रोनस अब वक्त गया, अब ऑनलाइन सिंक्रोनस क्या है? अब एसिंक्रोनस में जैसे आपको है स्वयं में है या किसी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में जो कंटेंट है उसमें जब आप कभी भी अपने हिसाब से खोल के पढ़ते हैं तो दैट इज टाइप ऑफ एसिंक्रोनस मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सो अब समय के हिसाब से हमें अपने आप को आगे चेंज करना है। बुक्स के बारे में हमने पहले बात कर दिया था कि इसके बेनिफिट्स क्या है और इसमें जो कोर्सेज बुक्स का हो कैसा हो,
तो 4 क्राइटेरिया को कहा गया ध्यान में रखिए। पहला क्या है कि एक तो ये CBCS कंप्लाइंट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम मींस एक टाइम बाउंड फ्रेम का बने, यानी कि एक क्रेडिट अगर आपको लेना है बच्चे को तो कितने घंटे का कंटेंट उसमें हो, कितना होना चाहिए क्रेडिट का, मतलब 13 से 15 घंटे। स्टूडेंट का कंटेंट है तो, टीचर का कंटेंट है तो, जैसे रिफ्रेशर कोर्स या ओरिएंटेशन कोर्स होता है, टीचर्स के लिए जो कोर्सेज बनते हैं वो है 40 घंटे का कोर्स, 4 घंटे। टीचर्स को क्रेडिट नहीं मिलता है, उसको सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट रिफ्रेशर कोर्स कर ले अपने सब्जेक्ट का, तो उसको 60 घंटे का कोर्स नहीं करके 40 घंटे का भी करेगा तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है, क्योंकि ये माना जाता है कि उसने तो हायर लेवल का कोर्स किया। फिर एक स्टूडेंट है, मैं स्टूडेंट हूँ और आपने टीचर के लिए कोई डेवलप किया है, तो वो 40 घंटे का कोर्स भी मेरे लिए, अगर हम अपने स्टूडेंट करते हो 60 घंटे का करते हैं, लेकिन टीचर्स का कोर्स 40 घंटे का भी है तो हायर लेवल का कोर्स है, तो उसको कम टाइम में भी करके उसको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो नॉर्मली एक स्टूडेंट का जो क्रेडिट है दैट इज 13 to 15 घंटे का 1 क्रेडिट मल्टीप्लाइड बाय 4, उसको 52 या 50 घंटे से लेकर 60 घंटे का बीच का स्टडी करना है, देन ही or she will be able to get 4 क्रेडिट, यानी कि एक पेपर के बराबर उसका क्रेडिट ट्रांसफर होगा। दूसरा हाई क्वालिटी कोर्सेज है, क्योंकि जो भी कोर्सेज ऐसे प्लेटफॉर्म पर डाले जाएंगे कोई भी डाल देगा ऐसा तो है नहीं, उसके लिए एक भाई यूनिवर्सिटी लेवल पर भी है तो वहाँ एकेडमिक काउंसिल होती है, डिपार्टमेंट की एक एकेडमिक पैनल होगी जो उसने जो भी एडिटिंग करनी है, जो भी करनी होगी, गलतियाँ होंगी उसको एडिट करके डालेगा। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये हाई क्वालिटी कोर्सेज है दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय द एमिनेंट पर्संस। तीसरा क्या है, ये वन क्लिक सॉल्यूशन है कि फिजिकली यू डोंट हैव टू कम एनी टाइम, आपको वर्चुअली रहना है और आप राइट फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट आपको वो सारी चीजें ऑनलाइन मोड पे ही रहनी है। और चौथा है फ्री रजिस्ट्रेशन है कि कोई चार्जेस नहीं है एक्सेप्ट फीस जो लगता है वो एनटीए का एग्जामिनेशन का वो है। इनको मैं छोड़ रहा हूँ, अब प्रपोजल पे मैं आऊंगा कि हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर प्रपोजल। एलिजिबिलिटी के लिए अक्सर लोग पूछते हैं कौन एलिजिबल है, कोई भी एलिजिबल है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे वो हमारा रजिस्ट्रार जो हमारे होते हैं रजिस्ट्रार डिप्टी रजिस्ट्रार या कोई भी ऑफिसर हो, कोई भी टीचर हो, लाइब्रेरियन हो, इवन कोई एक्सपर्ट IITs का है, कोई बाहर का भी है, कोई जरूरी नहीं कि एजुकेशनल सिस्टम का ही हो। Anybody is eligible if he or she is able to contribute in the development of the content for a particular level। बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो गाँव में है, जो आपको मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जानते हैं, लेकिन उनके ज्ञान को भाई एक्सप्लोर करना है, उनको जानना है, समझना है, तो इवन उनका भी हम चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो कोई भी टीचर या प्रोफेशनल ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी इज एलिजिबल, कोई कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से कोलैबोरेट कर सकता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ एरिया है किसी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के कुछ लोगों से मिलकर कोलैबोरेट करके करिए। कोई भी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट कर सकता है, कॉलेज फिजिकली भी कॉलेज यूनिवर्सिटी करेगा, वहाँ का व्यक्ति करेगा ना, वहाँ का एक्सपर्ट करेगा। उसी तरह से कॉन्सर्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज, कई यूनिवर्सिटीज मिला के भी प्रोग्राम कर सकती है, जैसे एडमिटेड 7 IITs मिलकर उसको तैयार की, अब लगभग सारी IITs अपना अपना प्लेटफॉर्म इंडिविजुअली भी बना के कर रही हैं। कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स या NGOs, कोई जरूरी नहीं कि हमारी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज या ये कोई इंस्टीट्यूशन करे, इवन NGOs आर अलाउड टू डू दैट। अगर उनके पास ऐसे एक्सपर्ट टीम है, ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, तो दे आर आल्सो एलिजिबल टू डेवलप दी कंटेंट for the benefit of the students or learners of this country। एक भाषा में बनाया, हमने कहा कि 14-15 भाषाओं में उसको वॉइस ओवर करने की स्वतंत्रता है, लिबर्टी है। इंसेंटिव, थोड़ा बहुत इससे बातचीत होती है, थोड़ा बीच में फायदे की बात, बिना इंसेंटिव का मजा नहीं आता। तो इंसेंटिव क्या है, एक तो फंडिंग मिलती है। जब मुझे पोस्ट बनाने के लिए 20 लाख दिया तो मुझे समझ नहीं आया कि उसमें खर्च कहाँ करें, चाह के भी नहीं खर्च कर सके, एंड हैड टू रिफंड 10 लाख रुपीस, क्योंकि फालतू इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हम टेबल कुर्सी फर्नीचर नहीं खरीदते, बीच में है तो मिलाइए, तो अब क्या कुछ खरीदे। लेकिन 10 लाख भी बहुत था, क्योंकि रिकॉर्डिंग मुझे लगती नहीं, कहाँ लगेगी, एडिटिंग में कितना पैसा किसको देगी, आपके वेटर्स पड़े हुए हैं, आपको बहुत आसानी से वो सारा PPT और सारा आपकी वॉइस को मर्ज करके एडिट करके आपको दे देंगे। तो फंडिंग इज देयर। दूसरे आपको सिलेक्शन या कैश में करियर एडवांसमेंट स्कीम में इसका बेनिफिट है। और अगर आप एक मॉड्यूल बनाते हैं तो वो एक इंटरनेशनल पेपर के बराबर हो जाता है। वन मॉड्यूल इज इक्वल टू वन इंटरनेशनल पेपर, उसका बेनिफिट है।
तो आपको तो खेलना आना चाहिए टेक्नोलॉजी के साथ। आजकल के छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, आप लोगों की पीढ़ी आप ज़्यादा जानती है इन कंपैरिजन टू आवर्स। ये बेनिफिट है। और भारत का फायदा क्या, देश का फायदा क्या है कि उसका इतना अधिक राष्ट्रीय डिपॉजिटरी डेवलप है। इसके लिए एक एजेंसी है नीट बनाई गई है नई एजुकेशन पॉलिसी में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई कंटेंट डेवलपमेंट को देखेगी, मॉनिटर भी करेगी। 21 विश्वविद्यालय को जो है 100 विश्वविद्यालय वो कहा गया है, बाकी पैसा तो है नहीं कहा गया है। 100 को कहा गया कि आपको करना ही करना है, यू हैव टू स्टार्ट ऑनलाइन कोर्सेज, बट इट डजंट मीन कि अदर यूनिवर्सिटीज अदर इंस्टीट्यूशंस आर नॉट सपोज्ड टू डेवलप ई कंटेंट इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। सबको करना है। तो नीट इज एन एजेंसी व्हिच विल लुक आफ्टर द डेवलपमेंट कि कैसे काम हो रहा है यूनिवर्सिटीज में, कितना काम हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ। सो नीट, दैट इज नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, which is responsible for the development of the content in different universities of our country. बुक्स की बात करें तो आपको बहुत कॉमन चीजें हैं कि जो फर्स्ट डिकेड था, इंटरनेट का दौर था, 8 में आता है बुक्स का कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा में, और मात्र 3-4 वर्षों में बाढ़ सी आ गई। दुनिया के सारे विश्वविद्यालय जो मजबूत विश्वविद्यालय, उनके स्ट्रेंथ नहीं है, पॉपुलेशन कम है, उनको टीचिंग लोड कम है, तो उन लोगों ने कोर्सवेयर बना के सारे सब्जेक्ट तैयार करके रख दिया। हमारे लिए तो खतरा कर दिया ना कि वो तो कोर्सवेयर पूरी बना के शोरूम अपनी ब्रांड करने के लिए, खोलने के लिए हम खड़े हैं। तो उनको काउंटर करने के लिए अब हम लोगों को दबाव बन रहा है कि नो, यू आल्सो स्टार्ट डेवलपिंग ई कोर्सेज और massive open online courses, so that not only the students of India but the students from other countries of the world can also get registered in those courses. ये आपको अर्न करना है, खाली आपको एक्सपोर्ट थोड़ी करना है अपने विद्यार्थियों को कि वो यूके जाए, यूएस जाए पढ़ने के लिए, जर्मनी जाए, फ्रांस में जाए। हमें तो 10 से 15% लड़कों को लाना है। और जो कोर्सवेयर ही नहीं दिखेगा तो कौन आएगा? आज की हालत क्या है? अभी आपके अफ्रीकन स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे यहाँ, 294 स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम दे आर फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज, वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम यूरोप और अमेरिका इन साइंस और टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स कि we are not equipped, we are not ready with the courseware जो डिलीवर हमें करना है या अपनी जो नीड है। और हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं बाहर, कोई यूएस जा रहा है, कोई यूके जा रहा है, कोई रशिया जा रहा है, तो ये हमारी वीकनेस है, हमारी उसको पूरी करनी। तो एक 4-5 सालों में इतना परिवर्तन आया और हम 2025 में, वो तो कहिए पार्लियामेंट ने रोका हुआ था 10 सालों तक करीब वो बिल पास नहीं हुआ था, वो चीजें थी। चैलेंजेस की बात नहीं करेंगे, चैलेंजेस भी ऑल नो, और उस चैलेंज के बीच में हमको आगे बढ़ना है। अब मान लीजिए आपको एक असाइनमेंट में देता हूँ कि आज से चौथे दिन आपसे हम मिलेंगे और इसके बीच में आपको आधे घंटे का ये कंटेंट बनाना है। आपका अपना टॉपिक होगा, आपका अपना सब्जेक्ट होगा, और क्या करेंगे? पहला काम क्या करेंगे? फर्स्ट काम क्या करते हैं? पेपर लिखने में क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ पेपर्स, कंटेम्प्रेरी। फर्स्ट वर्क इज ई कंटेंट कलेक्शन। कहाँ से करेंगे? OER मीन्स व्हाट? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। आप जैसे ही गूगल में डालेंगे अपने सब्जेक्ट में OER, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें आएंगी। विजुअल्स कहाँ से मिलेंगे? विजुअल्स कहाँ से देखते हैं आप? यूट्यूब से। तो यूट्यूब से भी आपको विजुअल्स लेना है और ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज लेना है। यूट्यूब से सारी चीजें नहीं लेना है। आप यूट्यूब खोलेंगे, उसके बाद दाहिने तरफ देखेंगे कॉलम में फिल्टर आता है लिखा हुआ। यूट्यूब में जब खोलेंगे अपना सब्जेक्ट डालिए, मान लीजिए आपका विषय जो है इकोनॉमिक्स है, आपने डाला इकोनॉमिक्स में जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन है वो आपने डाला, दाहिने हाथ में एक फिल्टर दिखाई पड़ेगा। उस फिल्टर को आप क्लिक जैसे ही करेंगे तो एक मेनू आपको सामने दिखाई पड़ेगा। उस मेनू में जब आएंगे तो उसमें क्रिएटिव कॉमन्स लिखा होगा। उस क्रिएटिव कॉमन्स को क्लिक कर देंगे तो जो फालतू चीजें वो हट जाएंगी और बाकी जो बचेगा उसको आप यूज कर सकते हैं। वो लाइसेंस एग्रीमेंट से आप मुक्त रहेंगे, आप पर कोई भी दबाव नहीं होगा, कहीं भी आप चैलेंज नहीं किए जाएंगे कोर्ट में, क्योंकि ये चीजें ऑनलाइन ऐसा को दिखाई पड़ेगी। तो आपको लाइसेंस एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए वही चीजें लेनी है जो आपको अलाउ करता हो, परमिट करता हो। Are you getting my point? So first is collection. Collection of what? OER, paper, journals, e-books, जो भी आपको रिलेवेंट लगता है उसको कलेक्ट करिए। विजुअल्स फ्रॉम यूट्यूब से आपको क्रिएटिव कॉमन्स के द्वारा फिल्टर किया हुआ कंटेंट ही आपको लेना है।
पहला काम हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है? क्रिएशन ऑफ ई कंटेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल। आपने दूसरा तो कंटेंट आपने कलेक्ट कर लिया कि मेरा जो मान लीजिए मैं पानी पे काम करता हूँ, हाइड्रोजियोलॉजी का मैंने कुछ पेपर्स कुछ और सारी चीजें विजुअल्स हमने कलेक्ट कर ली, लेकिन मेरी अपनी रिकॉर्डिंग, मेरा अपना रिसर्च, अपना कंटेंट, वो हम पीपीटी बनाएंगे। पीपीटी बनाने के बाद उसको हम लेक्चर डिलीवर करेंगे, दैट विल बी रिकॉर्डेड आफ्टर एडिटिंग, दैट विल बी अपलोडेड। अब लैपटॉप पे आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ बेसिक या इजी सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रेजेंटेशन ट्यूब है, स्क्रीन कास्टिफाई है, स्क्रीन कॉस्टोमैटिक है, ये सब बहुत हैंड्स ऑन इजी वाले सॉफ्टवेयर से बच्चे को भी आप बोल देंगे ना तो खोल के सीख लेगा और आपको बता सकता है। तो उसकी सहायता से आप अपना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप अपनी तस्वीर को बाएं दाएं ऊपर नीचे जहाँ भी चाहे मूव करते रहिए कर सकते हैं, क्योंकि बीच में तो आपका चेहरा आना नहीं चाहिए, साइड में भले ही आता रहे, ऊपर नीचे आता रहे। तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स व्हिच आर अवेलेबल, यू कैन रिकॉर्ड योर ऑन लेक्चर इन ऑडियो विजुअल मोड। तो दूसरा काम क्या हो गया? क्रिएशन ऑफ ई कंटेंट। फर्स्ट वाज कलेक्शन फ्रॉम कैसे? थ्रू OER एंड थ्रू यूट्यूब। यूट्यूब में आपको क्या करना है? फिल्टर करना है। फिल्टर किससे करना है? क्रिएटिव कॉमन्स आएगा, मेनू नीचे गिर के आएगी, उस पर क्रिएटिव कॉमन्स को क्लिक करेंगे तो जो फिल्टर होकर बचेगा दैट कैन बी यूज्ड। अब आपने अपना भी बना लिया। तीसरा काम क्या करना है? इसको स्टोर करना है सेफली, ताकि हम उसको डिसेमिनेट कर सकें। स्टोर कहाँ करेंगे? ऐसे इंडिविजुअली करेंगे तो उसकी क्या महत्व है? बेकार है। हजारों लोग कर रहे हैं, उसमें एक आप ही जुड़ जाएंगे। उसकी उपयोगिता कब होगी? जब वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म से रन करेगा, जब वो एक आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू मूव करेगा, चलेगा। एक कोर्स के रूप में कनेक्टेड फॉर्म में जब वो सारे जुड़ के लेक्चर्स रहेंगे एक जगह, कि फर्स्ट वीक के लिए 5 लेक्चर्स 6 लेक्चर्स हैं, सेकेंड वीक के लिए हैं, थर्ड वीक के लिए हैं, फोर्थ वीक के लिए हैं, तो उसको एक सीक्वेंस वाइज एक कनेक्टेड फॉर्म में जब आप रखेंगे और उसको एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के प्लेटफॉर्म के थ्रू रन करेंगे, ओनली देन दैट विल बी यूजफुल। अदरवाइज ऐसे इंडिविजुअल टुकड़ों में डाल के रखेंगे तो क्या होगा? नाश्ते गाना गाते सब पे डाले रहे, तो ऐसा यूट्यूब पर डालने का कोई बात नहीं। बट आपने यूट्यूब को उसको डाला ठीक किया, बट अब उसको डिसेमिनेट करना है। तो क्या करना है? आप एक जो अवेलेबल है, फ्री नहीं है, आप इंडिया में इतनी यूज होने लग गई है, डिमांड बढ़ गया, जो फ्री हुआ करती थी वो सब्सक्रिप्शन आ गया, तो ज़्यादा नहीं है, 1500 या 1800 रुपये लगता है मोडल। आप डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। जब रजिस्टर करेंगे तो मेन्यू ड्रिवन है। अब फिर बात आई कि किसी भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में मैं रजिस्ट्रेशन कैसे करूँ? 3 रोल होता है किसी भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में, या स्वयं पे हो चाहे किसी भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में, देयर आर 3 रोल्स। क्या क्या रोल होता है? एक स्टूडेंट के रूप में रजिस्टर करते हैं, जैसे स्वयं पे जाएंगे तो एज ए स्टूडेंट का खुलेगा, अब एज ए टीचर रजिस्ट्रेशन नहीं आपका होगा, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा कोर्स ऑलरेडी है। एज एडमिनिस्ट्रेटर मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं उस कोर्स का कोऑर्डिनेटर हूँ। तो 3 रोल होते हैं, एक स्टूडेंट का, एक टीचर का और एक एडमिनिस्ट्रेटर का। एक एडमिनिस्ट्रेटर एक स्टूडेंट का रोल अदा कर सकता है, एक टीचर का भी रोल अदा कर सकता है, बट एक स्टूडेंट एक टीचर या एडमिनिस्ट्रेटर का रोल अदा नहीं कर सकता। लेकिन सीखना तो आपको है एज एडमिनिस्ट्रेटर या एज ए टीचर, देन व्हाट टू डू? स्वयं को आपको इन्वाइट कर लेना है फॉर दैट पर्पस, फॉर द हैंड्स ऑन पर्पस। एक सिंपल है, मोडल पे आज घर जाके डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर करिए और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप उसमें रजिस्ट्रेशन करिए। कुछ पैसे का चार्जेस का है साल का, आप उसको करिए। उसमें आप खोलते जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि आप कौन सा कोर्स शुरू करना चाहते हैं। एक इमेजिनरी प्लान कर लीजिए कि मैं ये कोर्स BA का शुरू करना है, मुझे इकोनॉमिक्स का करना है, क्या वो दे तो नहीं थके तो नहीं ना? नहीं सर, कोशिश है कि मैं कहानी के रूप में आपसे बात करूं। वेरी नॉलेजेबल बंदा के शुरू करें? रात में जाके मोडल को आप डाउनलोड करके रजिस्टर करिएगा। चार्जेस के लिए चिंता मत करिएगा, चार्ज पे बहुत ज़्यादा नहीं और ये आपके जीवन भर काम आएगा।
साइट नेम पूछेगा, तो साइट नेम ऐसा दीजिए जो बहुत पॉपुलर हो। जैसे मुझे अपना साइट बनाना होगा तो क्या करूँगा, मैं उसमें कहीं ना कहीं BHU वर्ड जरूर डालूंगा, क्योंकि वो ज़्यादा क्लिक करने वाले लोग हैं, ज़्यादा देखने वाले लोग हैं, तो वो क्लिक करेगा तो मेरा अपना साइट भी दिखाई पड़ेगा। उसी तरह से आप कोई भी ऐसा पॉपुलर एक साइट डेवलप करनी है, उसका नाम पूछेगा। जब भी आप मॉडल को, जैसे हमने कहा, या किसी भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को जब आप डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करेंगे, तो उसमें वो साइट का नेम आपसे जनरेट करने के लिए बोलेगा। तो अपने एक चॉइस से एक साइट का नाम जनरेट कर लीजिए। फिर पूछेगा कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस यू आर गोइंग टू डेवलप। इमेजिन कर लीजिए कि मैं BA फर्स्ट ईयर का शुरू करना, कब से करेंगे, तो मान लीजिए जनवरी है, जुलाई में आपको शुरू करना है, डेट वेट डालते जाएगा तो आगे खुलता जाएगा, वो डेट पूछेगा। फिर पूछेगा कि कितने वीक का कोर्स होगा, आप वीक डालेंगे। फिर फर्स्ट वीक कब से कब 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 होगा, वो आप डालेंगे। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें आपसे पूछता जाएगा। और अब कोर्स शुरू होने से पहले आपका मटेरियल रेडी होना चाहिए, आपका कलेक्टेड मटेरियल, आपका क्रिएटेड मटेरियल, आपके क्वेश्चंस जिसके आधार पर आपको इवैल्यूएट करना है, वो आप जो आपने रिकॉर्डिंग करके रखा है, YouTube पे रखा है, उस पर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करके लिंक पेस्ट कर दीजिए, वो देगा जगह कि यू पेस्ट योर लिंक हियर। तो उन सारे का जो भी रेलेवेंट वीडियोस हैं या आपका अपना वीडियोस है, उनकी लिंक को आप उस स्पेसिफाइड प्लेस पे कॉपी पेस्ट करते जाइएगा। तो आपका स्पेस ही गया, क्योंकि मॉडल आपको सिर्फ 200 MB का स्पेस दे रहा है और आपकी वीडियोस कई GB में है। तो चीज़ें क्लाउड में है, बट कंट्रोल हो रहा है आपका लर्निंग मैनेजमेंट। जैसे मॉडल को हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, तो उसी तरह से जब भी कोर्स शुरू होगा उसके पहले वो सारे कंटेंट उसमें अपलोड होना चाहिए, अदरवाइज कोर्स विल बी फ्लॉप हो जाएगा। और इसमें आप बच नहीं सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पक्षों की होगी, स्टेक होल्डर दोनों जो हैं, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों की चीज़ें ओपन रहेगी कि कौन कितने समय में चीज़ों को डाला, पढ़ने वाला कितने समय तक उसको ओपन किया, देखा कब आया। तो कोई एक दूसरे को दोषारोपण ओपन नहीं कर सकता, एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है। तो ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आप उसको डिसेमिनेट करेंगे और इस साइट को जो आप डेवलप कर रहे हैं उसको पॉपुलराइज कर दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, वायरल कर दीजिए कि ये सब्जेक्ट का ये कोर्स है, ये अवेलेबल है। तो ये 4 स्टेप होते हैं ई कंटेंट डेवलपमेंट के: कलेक्शन, क्रिएशन, स्टोरेज और डिसेमिनेशन। असेसमेंट का तो मुझसे आएगा। अब हमने कहा OER किसको बोलेंगे, जितना भी सामान पड़ा हुआ है सब OER नहीं है। बहुत सारे एजुकेशनल रिसोर्स पड़े हुए हैं, एजुकेशनल मटेरियल पड़ा हुआ है, OER किसको कहेंगे? देयर इज अ 5R फॉर्मूला। 5R फॉर्मूला क्या कहता है कि जो कंटेंट, जो एजुकेशनल मटेरियल आपको रिटेन करने को परमिट करता हो, आपको रीयूज करने को परमिट करता हो, इसमें वाइट वाले नहीं है ना, ऐसे नहीं लिखा है। तो ये आपको दिख रहा है ना, रिटेन, रीयूज, रिवाइज, रीमिक्स, रीडिस्ट्रीब्यूट। अगर ये 5 चीजों को करने की परमिशन देता है वो कंटेंट का मतलब उस कंटेंट का ऑथर जो उसको तैयार, आपने तैयार किया हुआ है, आपने उसको यूट्यूब में डाला हुआ है, तो आपने किस कैटेगरी में उसको डाला है ये आप उसमें तय करेंगे और वो दिखेगा। तो अगर कोई भी एजुकेशनल कंटेंट जो आपके काम का है, अगर वो 5R को परमिट करता है, रिटेन करने को, रीयूज करने को, रिवाइज करने को, रिमिक्स करने को, डिस्ट्रीब्यूट करने को, only then that content, educational content, can be considered as a open educational resource. ऐसा इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि ऐसा एजुकेशनल मटेरियल जिसको आप एडिट कर सके, जिसको कस्टमाइज कर सके, जिसको अपने हिसाब से आप चेंज कर सके। मान लीजिए आपकी साइकोलॉजी का है, कहीं यूएस का कोई पीपीटी आपको अच्छा लगा गया, कोई स्केल अच्छा लगा, जो भी आपके यहाँ होता है साइकोलॉजी, उसको आपने ले लिया, लेकिन उसको अपने अकॉर्डिंग से मॉडिफाई करना, क्या परमिट कर रहा है नहीं कर रहा। अगर ये परमिट कर रहा है देन दैट कैन बी कंसीडर्ड एज एन ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। अब ये लाइसेंस देने वाली एजेंसी का नाम क्या है? क्रिएटिव कॉमन्स। क्रिएटिव कॉमन्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच गिव्स 6 different type of licenses to any content which is posted on the public domain। उससे आप लाइसेंस जो आप ट्राई लेंगे तो आप उसके साइट पे जाएंगे और खोलेंगे, वो आपसे जो पूछता जाएगा उसको आप फॉर्म को भरते जाएंगे। सो क्रिएटिव कॉमन्स इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन that enables the sharing and
use of creativity या knowledge through free legal tools, कि जिसमें आपको लॉ के हिसाब से या लीगली आपको कहीं दिक्कत में नहीं पड़ेंगे आप, कि अगर क्रिएटिव कॉमन्स के द्वारा दिया गया लाइसेंस के तहत आप उसको यूज कर रहे हैं, परमिट करने के अगर अलाउ करता है तो आप फ्रीली होकर आप उसको यूज कर सकते हैं। सो क्रिएटिव कॉमन्स के द्वारा जो लाइसेंस, और ये 6 तरह का लाइसेंस आपको देता है। 6 टाइप ऑफ लाइसेंसेस आर गिवन। वो 6 तरह के लाइसेंसेस क्या है? तो ये 6 तरह के लाइसेंसेस हैं, ये ग्रीन और रेड दिख रहा है 6 में। एक लिखा है सीसी, सीसी मीन्स क्रिएटिव कॉमन्स। सीसी बाई, अगर आप जैसे जाएंगे किसी भी कंटेंट को तो आपको सिंबल दिखाई पड़ेगा। सीसी बाई ऐसे, ऐसे का मतलब शेयर अलाइक, यू कैन यूज। सीसी बाई एनसी नॉन कमर्शियल है, नॉन कमर्शियल यूज कर सकते हैं आप उसको। चौथा है सीसी बाई एनसी ऐसे कि नॉन कमर्शियल यूज कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कोई क्लासरूम शेयर भी बिना जाने समझे किसी भी पीपीटी को नहीं करना चाहिए। कि कहीं का फॉरेन का आपने उठा लिया और उसको आप शेयर कर देते हैं तो वो लीगली हो सकता है कि आपको समस्या में डाल सके। तो क्या वो शेयर करने को परमिट करता है नहीं करता है कि आपको देखना चाहिए। तो सीसी बाई एनसी नॉन कमर्शियल यूज करेंगे, सीसी बाई एनसी ऐसे नॉन कमर्शियल यूज कर सकते हैं, नॉन कमर्शियली जहाँ प्रॉफिट नहीं आप ले सकते हैं, उसको सेल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए पैसे नहीं दे सकते और उसको आप शेयर कर सकते हैं। रेट में जो लिखा हुआ है इसको आपको OER नहीं कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अलाउ नहीं कर रहा है। नो डेरिवेटिव्स कैन बी फाउंड, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। आप पढ़ने के लिए खोलिए, अपने खुद के लिए पढ़िए, देखिए जो करना है करिए। सीसी बाई एनसी एंड डी ये नॉन कमर्शियल है, बट नो डेरिवेटिव्स कैन बी फाउंड, इसको आप एडिट या चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो 4 ऊपर टाइप के लाइसेंसेस अगर आपको दिखाई पड़ते हैं किसी कंटेंट पे, दैट कैन बी यूज विदाउट एनी हेजिटेशन। और जहाँ लाल में जो लिखा हुआ वैसा दिखाई पड़ता है ये सिंबल, तो उसको आपको यूज नहीं करना है। अरे OER को और चीज भूल गया। OER सबके लिए है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो रिसर्चर हो, चाहे कोई भी। तो इसका मतलब क्या है कि आप चाहे इंस्ट्रक्टर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे सेल्फ लर्नर हो, सबके लिए पूरा का पूरा कोर्स उपलब्ध है। कोर्स मॉड्यूल आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे और कोर्स मॉड्यूल बना है, सिलेबस, लेक्चर्स, असाइनमेंट्स एक तरह के उसमें अवेलेबल है, उसको यूज कर सकते हैं। क्विज है, लैब है, क्लासरूम एक्टिविटीज है, पेडागॉजिकल मटेरियल्स हैं, गेम्स हैं, सिमुलेशंस हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है जिसको आप यूज कर सकते हैं। बट OER के तहत हो तो इसी को समझाने के लिए इसका ट्यूटोरियल फॉर्म में है। ऊपर का जो 4 कैटेगरी है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है, दैट कैन बी यूज्ड फ्रीली, और नीचे का जो 2 कैटेगरी है उसको यूज नहीं कर सकते फ्रीली, इसलिए उसको कहा गया कि नो दे कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्स। ये जब आप लाइसेंस लेने के लिए, मान लीजिए आपने बनाया कोई लेक्चर अपना और आप चाहते हैं कि मैं क्रिएटिव कॉमन्स से लाइसेंस ले लूँ, उस हिसाब से मैं प्लेस करूँ, तो फॉर्म आप उसका खोलेंगे, उसको साइड में जाके तो आपसे पूछेगा कि आप क्या चाहते हैं उस 6 कैटेगरी में। तो जो आप डालते जाएंगे वो एक्सेप्ट करेगा और वैसे ही वो दूसरों को दिखाई देगा। ये हमने बताया था यूट्यूब फिल्टर और सीसी सर्च। तो फाइनली एक थोड़ा और समझ करते हैं, उसका प्रपोजल करते हैं, 10 मिनट प्रपोजल करेंगे कि एक तरह से इसको 4 फोल्डर अप्रोच के रूप में समझ सकते हैं। एक फोल्डर का आपका वीडियो कंटेंट विजुअल्स है, एक कंटेंट में एक फोल्डर में आपका टेक्स्ट और वेबलिंक्स है, तीसरे में असेसमेंट वगैरह की चीजें जो करनी है उसको रख लीजिए, और चौथा है कि आपको अवेलेबल रहना है डिस्कशन के लिए अपने लर्नर्स से। हमने कहा था कुछ ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो रोज नए भी आ रहे हैं, जो पहले के भी हैं, और इनकी सहायता से आप अपने ऑडियो विजुअल्स लैपटॉप पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने यूज के लिए, अपने क्लासरूम टीचिंग के लिए। लेकिन आपको बहुत अच्छा अगर रिकॉर्डिंग करनी है तो आप रिकॉर्डिंग अगर कैमरा से करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप सामने बैठे, आपका टेबल पे सामने लैपटॉप रहे और पीछे से आपकी वो क्या कहते हैं कैमरा लगा हो, और आपके आईज वगैरह ऐसा ना लगे कि आप उसको किसी को पढ़ रहे हैं। तो उसकी थोड़ा पहले से प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा फ्लुएंसी लाइए, 2-4 बार ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो लगेगा कि जैसे न्यूज़ पे रीडिंग करती है वैसे आप उसको आराम से करेंगे और आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। फिर जब पूरी होगी आपकी टॉक तो उस पीपीटी को आप उसको दे दीजिए, वो उसको दोनों को मर्ज कर देगा कि आवाज़ और पीपीटी साथ साथ चले। तो ये लैपटॉप की सहायता से हमने बोला था
स्क्रीन कॉस्टोमेटिक प्रेजेंटेशन की स्क्रीन क्लासिफाई, उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं नए और भी प्रोमो सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ यू आर गोइंग टू या हाउ मच टेक्नो फ्रेंडली यू आर, और कैसे आप उसको अपनी ऑडियो विजुअल्स डेवलप करना चाह रहे हैं। खुद की प्रैक्टिस के लिए घर में बैठ के लैपटॉप पे करना है, उसको प्रैक्टिस करिए और आप यूज कर सकते हैं। अब जब सर्कुलर आया यूनिवर्सिटीज में कि दोज हु आर विलिंग टू डेवलप कोर्सेज दे कैन सेंड देयर प्रपोजल, तो मुझे भी पता चला, तो फिर फटाफट हमने भी एक अपनी कोर्स के बारे में एक बनाया स्ट्रक्चर कि यस आई वांट टू स्टार्ट ए कोर्स फॉर द टीचर्स। अर्पित के अंतर्गत, अर्पित नाम है, अर्पित पता हो गया, तो उसमें है कि आपको बताना है, जैसे किसी फिल्म के पहले एक ट्रेलर होता है ना, 2.5 घंटे का फिल्म का 2-2.5 मिनट से अधिक का ट्रेलर नहीं होता है, जिसमें वो सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। सिमिलरली आपको प्रोमो वीडियो बनाना है, जिसमें आप बताएंगे इसका कंटेंट क्या होगा, किसके लिए होगा, इसको करने के बाद आउटकम क्या होगा, इसके बाद क्या बेनिफिट होगा स्टूडेंट को, किस लेवल का स्टूडेंट होगा, कितने क्रेडिट का होगा, कितने आवर्स का होगा, इसमें कितने ऑथर्स होंगे, मीन्स कितने लोग, किस लेवल के लोगों का लेक्चर है, ये आप चाहें सारा कुछ जो भी आपको लगता है उसको हाईलाइट करना है, और इसको आपको भेजना है नेशनल कोऑर्डिनेटर को। नेशनल एजेंसी कहा जाता है। नेशनल कोऑर्डिनेटर को सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो फंडिंग एजेंसी, जैसे यूजीसी नेशनल कोऑर्डिनेटर है नॉन टेक्नोलॉजी पीजी सब्जेक्ट्स के लिए, सीईसी नेशनल कोऑर्डिनेटर है यूजी सब्जेक्ट्स के लिए और 40 पीजी सब्जेक्ट्स के लिए, तो उसको फंडिंग एजेंसी में आप सिंपल तरीके से जो याद है तो कह सकते हैं, तो उनको आपको प्रपोजल भेजना होता है, और उसमें पहले आपको एक बनाना है, आपकी पूरी तैयारी कर लीजिए कि मैं इस कोर्स को बनाना है, मुझे इसका कंटेंट ये होगा, उसका सिलेबस ये होगा, ये 40 आवर्स का होगा, आई मीन 60 आवर्स का होगा, इसमें इतने विजुअल्स होंगे, इतने आवर्स का, इसमें ये होंगे, इसका असेसमेंट का मेथड ये होगा, ये सारी चीज़ें एक पीपीटी में बना के उसको आपको 2.5 से 3 मिनट से अधिक ना लगे। एक प्रोमो वीडियो बनाना है, पहली बार जब आप बनाए तो 6 मिनट लगा, तुरंत वापस हो गया, फिर बनाया भेजा, नहीं इसको रिड्यूस करिए, इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि आपका प्रोमो वीडियो 6 मिनट का देखेगा, कोई नहीं देखेगा, ऐसे ही रह जाएगा। फिर बनाया 4.5 मिनट तक आया खींच के, फिर लौटा दिया, चौथे बार में खींचते खींचते 2.5-3 मिनट में आया तो बोला चलिए एक्सेप्टेबल और लग रहा है कि ये सीन कैन डेवलप इट, तो वहां से फिर इन्विटेशन आता है कि नाउ यू कैन ज्वाइन आवर नेशनल प्लेटफॉर्म एज अ नेशनल टीचर। तो वो दिन सोचिए कितनी खुशी मिली होगी कि जब आपको इन्विटेशन मिलता है और आपको ऑर्डर मिलता है नेशनल प्लेटफॉर्म पे जाने का और आपको एक्सेप्टेंस मिलता है, तो वो एक खुशी का वक्त होता है। तो आपको भी उस प्लेटफॉर्म में जाना है, और उस प्लेटफॉर्म में जाने का मतलब क्या है कि कम से कम 100 देशों में वो MOU है और वहाँ के लोगों के द्वारा आप जाने जाएंगे, अच्छा लगेगा, आपकी प्रोफाइल में आएगा, आपके सिलेक्शन प्रोसेस में आएगी चीज़ें। तो एक प्रोमो वीडियो बनाना है, तो ये प्रोमो वीडियो हमने अपने सब्जेक्ट के लिए बनाया और उसको हमने दिखाया। हम लोग की अपनी प्रॉब्लम है, हम लोग बाय बर्थ, हम लोग की जो लैंग्वेज है वो मातृभाषा हिंदी है, भोजपुरी है, नेचुरली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, तो वो प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो मैंने भी ये वीडियो 3 मिनट का बनाया था, और कोर्स का नाम क्या था, टूल्स टेक्निक्स एंड एक्सपेरिमेंट्स इन अर्थ साइंस, कि मेरा विषय ऐसा है कि जहाँ थियोरेटिकल ज़्यादा नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स का रोल ज़्यादा है, और वो इंस्ट्रूमेंट्स स्टेट यूनिवर्सिटीज वगैरह में उतने ज़्यादा होते नहीं है। यहाँ तो हम लोग लकी हैं कि IIT और BHU और साइंस और मेडिकल सब एक साथ है, तो लगभग सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाते हैं। तो मुझे लगा कि कोई आदमी, कोई बच्चा, कोई रिसर्चर कम से कम इंस्ट्रूमेंट देखे तो कैसा होता है, कि अगर हम नाम लेते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो देखे तो काम कैसे होता है, उसमें कैसे काम किया जाता है, ये EPM में है कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता कैसा है, ये होता कैसा, XRD होता कैसा। तो उस इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट में हमने पूरा कोर्स बनाया कि हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स पे ही बात करेंगे, उसी को टीचर्स को दिखाएंगे, क्योंकि उन टीचर्स को वहाँ मौका नहीं मिलता है दिखाने का, करने का नहीं। तो वो कोर्स हमने बनाया, और वो कोर्स फॉर द टीचर्स है, टीचर्स के लिए ये बना था 40 घंटे का, 20 घंटे का ऑडियो विजुअल, 20 घंटे का रीडिंग मटेरियल। लेकिन अगर ये स्टूडेंट के लिए होता तो 13 से 15 घंटे का एक क्रेडिट, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 से 60 घंटे का। तो स्टूडेंट अगर अपने लेवल का कोर्स करेगा तो उसको 52 से 60 घंटे का जो कोर्स है वो करना होगा, और वो सोचता है कि मैं इसको कर लूँ, अच्छे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो उसको वो कम टाइम में भी कोर्स करेगा तो उसको 4 क्रेडिट मिलेगा, और टीचर करेगा तो उसको रिफ्रेशर कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो एक प्रोमो वीडियो आपको बना के भेजना होगा। अब इसके लिए आपको प्रपोजल बनाना है,
हमने कहा किसको भेजेंगे, फंडिंग एजेंसी को, यानी फंडिंग एजेंसी कौन है यहाँ आपकी यूजीसी है। यूजीसी में आपकी जो टेक्निकल टीम है वो AICTE देखती है। AICTE की टेक्निकल टीम है जो उस चीज़ों को देखती है कि आपकी वॉइस क्लियरिटी, आपका रिकॉर्डिंग का जो क्लियरिटी है वो कैसा है, तो वो बता देंगे कि आपको ये यूज़ करिए, ऐसे यूज़ करिए। एक तरह से वो रिजेक्ट नहीं करते हैं बल्कि आपको गाइड कर देते हैं कि इसको थोड़ा और बेहतर कर लीजिए, क्योंकि पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं तो आपको कमी क्यों करनी है। अब हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन का कैमरा यूज़ करिए, रिकॉर्डिंग कराएंगे, जब इतना पैसा मिल रहा है तो हम क्यों सिंपली हम उसको लैपटॉप पे बैठ के करेंगे। वहाँ अगर करना है तो अपने स्टूडेंट्स के लिए करना है तो ठीक है, लेकिन वहाँ करना है तो हम बढ़िया सा साउंड प्रूफ स्टूडियो में बैठ के रिकॉर्डिंग कर लेंगे, या कमरे पे करना हो कमरे पे कर लेंगे अपने, तो उसके लिए वो नहीं। तो आपको एक कोर्स कोऑर्डिनेटर, यानी कि जो कोर्स को जो बना के भेज रहा है वो कोर्स कोऑर्डिनेटर कहलाता है। जिसको वो भेजेगा प्रपोजल वो नेशनल कोऑर्डिनेटर कहलाता है। और नेशनल कोऑर्डिनेटर का सिंपल अर्थ है यूजीसी या CEC या और किसी एजेंसी को जिसको भी भेज रहा है जो वो आपकी फंडिंग एजेंसी है। तो कोर्स कोऑर्डिनेटर जैसे ही नेशनल कोऑर्डिनेटर को भेजता है 2 वीक के अंदर प्रपोजल का रिप्लाई आ जाता है कि आपको एडिट करना है, आपको चेंज करना है, आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है या एज इट इज ओके। बहुत जल्दी होता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 1 महीने के अंदर सारी चीज़ें मूव कर जाती है। तो आपको कोर्स कोऑर्डिनेटर ने भेजा नेशनल कोऑर्डिनेटर को फॉर अप्रूवल, और विद इन 2 वीक्स वो चीज़ें आ जाती हैं। और उसमें आपको क्या भेजना है, कोर्स डिजाइन, क्वालिफिकेशन फॉर टेकिंग द कोर्स, कि किस लेवल के बच्चे उसको ज्वाइन करेंगे, लर्नर कौन होगा, इंट्रोडक्टरी वीडियो जो हमने कहा आपको वो वीडियो, असेसमेंट मेथड क्या होगा, नंबर ऑफ क्रेडिट कितना होगा, कोर्स अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका स्टार्ट डेट क्या होगा, एंड डेट क्या होगा, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा कि पढ़ने के बाद उसको क्या ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये सारी चीज़ों की जानकारी भेजी जाती है कि ये कोर्स में किस लिए बना रहा हूँ भाई, उसका कोई पर्पस तो होगा। तो एक तरह से उसकी कोई आपको अपनी जो बेहतर चीज़ें हैं उसको बता के भेज दी। कोर्स का शेड्यूल आपको भेजना है कि अगर कोई कोर्स मेरा 6 वीक का है, मान लीजिए हमने कहा जुलाई से शुरू हो रहा है, तो 6 वीक मतलब अगस्त तक जाएगा, लेकिन आप उसको टाइम देंगे कम से कम अक्टूबर नवंबर तक, कि इस बीच में वो 6 वीक पूरा कर लेगा। कोर्स 6 वीक का होगा, बट द टाइम ड्यूरेशन विल बी ऑफ 3 to 4 months, ये आपको तय करना है। तो आप उसको लिख के भेजेंगे कि स्टार्ट डेट कब होगा, एंड डेट कब होगा, और जो आप शेड्यूल देंगे उसी हिसाब से फिर आप चाहेंगे भी अपलोड करना कंटेंट को, फिर कोर्स स्टार्ट होने के बाद चेंज नहीं होता है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, वो बड़ी बेइज्जती की स्थिति होती है। हो तो जाएगा ही, इतना लिबर्टी रहती है, लेकिन खराब लगता है। तो आपको प्री प्लान तरीके से तैयार होके तब उस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में उन चीज़ों को टाइमली आप पुट करिए, ताकि कोर्स करने वाले को दिक्कत ना हो कि कोर्स स्टार्ट डेट आ गया, कोर्स दिख ही रहा है, वो सारी चीज़ें। फिर असेसमेंट आप चाहते हैं कि वीकली करें या लास्ट में करें, एकदम आप लास्ट में करिए एक साथ, क्यों हर बार के लिए आप करेंगे। कुछ लोग चाहते हैं कि वीकली हम असेसमेंट करें, ये क्वालिफाई करेगा तब नेक्स्ट वीक जाएगा, नेक्स्ट वीक कर लेंगे फिर तब थर्ड जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स कि कोर्स कोऑर्डिनेटर कैसे उसको चाहता है। तो ये सारी आपको चीज़ें भेज दी है उस प्रपोजल में। डिटेल्स ऑफ रीडिंग मटेरियल की लेक्चर नोट्स कितना होगा, एडिशनल रीडिंग वगैरह क्या होगी उसमें, ये सारी चीज़ें पीपीटी में तो प्रोमोट सामान्य बता दिया, लेकिन ओवरऑल वो टेक्स्ट मटेरियल में आपको मेल के थ्रू ये भी भेज देनी होती है कि ये चीज़ें रहेंगी। सेल्फ असेसमेंट मॉड्यूल, टोटल नंबर ऑफ क्विजेस कितने होंगे, टेस्ट कितना होगा, असाइनमेंट कितना होगा उस कोर्स के लिए, असेसमेंट सिस्टम कैसा होगा, वीकली होगा, बाई वीकली होगा या एट द एंड होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फैक्ट्री फंडिंग एजेंसी या नेशनल कोऑर्डिनेटर को भेजना पड़ता है एज ए कोर्स कोऑर्डिनेटर। जो कोर्स तैयार कर रहा है, 5 लोग हैं, 5 में से एक कोई कोर्स कोऑर्डिनेटर होगा, वो बनारस हो सकता है, वो इलाहाबाद हो सकता है, लखनऊ हो सकता है, ये 3-4 जगह भी हो सकती है, एक डिपार्टमेंट में भी हो सकता है, ठीक है। तो वन विल हैंडल द होल थिंग। जैसे किसी प्रोजेक्ट में पीआई होता है वैसे यहाँ कोर्स कोऑर्डिनेटर होता है और बाकी लोग उसके को कोऑर्डिनेटर होते हैं। उसके बाद ये सब हमने बताई दिया कि प्रीमटेरियल नोट्स के एक्स्ट्रा रीडिंग्स, डिस्कशन फोरम कब होगा, वीकली होगा या बाई वीकली होगा, टाइमिंग क्या देंगे हम, सारी चीज़ों को सब हम एक साथ तैयार करके उसको भेजते हैं। और जब अप्रूवल हो जाता है कि नेशनल कोऑर्डिनेटर क्या करता है कि जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं उसके साथ एक मीटिंग करते हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर का मतलब यूजीसी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, वो थोड़ी करेंगे। एआईसीटी की टीम आपकी टेक्निकलिटी देखेगी, लेकिन आपका विषय अगर इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के लोगों का पैनल होता है, 1-2 लोगों को बुला लिया, कंटेंट देख लीजिए ठीक ठाक है या नहीं है, या कुछ सजेस्ट करते हैं।
तो वही इनसे पुट द प्रपोजल बिफोर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ग्रुप, और सजेशन या कुछ इंप्रूवमेंट के लिए कुछ करना है तो वो आपको सजेस्ट करेंगे या चेंजेस के लिए कहेंगे तो आप चेंज करिए, और इन सब के बाद 2 वीक के अंदर आपको वो अप्रूवल आ जाता है, और फिर फंड्स आर एलोकेटेड बाय द नेशनल कोऑर्डिनेटर फंडिंग एजेंसी, और आपको ये हो जाता है। अब आपको पैसा मिल गया, आपने बनाना शुरू किया, तो फिर आपकी चीज़ें होगी कि स्टेप्स कि आप कहाँ कराएंगे, स्टूडियो कहाँ होगा, यूनिवर्सिटी में होगा, बाहर होगा, ये सारी चीज़ें आप प्लान करेंगे कि खर्च कितना आएगा, और अगर पॉसिबल हो तो बीच बीच में आप कम्युनिकेट भी कर लीजिए। तो स्टेप्स में आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडियो, यूनिवर्सिटी होगा या इंस्टीट्यूट होगा या आउटसाइड से भी हायर कर सकते हैं, लिखा भी है आउटसाइड में भी हायर, सेटअप या यूनिफॉर्म सेटअप इक्विपमेंट होना चाहिए कि 4 लेक्चर में हमने ये इक्विपमेंट यूज़ किया, दूसरे में हमारा कैमरा खराब हो गया, वो दूसरा कैमरा हमने लिया, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। एक सिमेट्री, एक सिमिलरिटी, एक जैसा क्वालिटी हो तो अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आपको दुनिया को सामने दिखाना है। अब ये लोकल लेवल के लिए नहीं, आप क्या करिए कि जब स्वयं तो जा रहे हैं आप यूनिवर्सिटी का प्लेटफॉर्म में है तो वो तो सभी चलेगा कि हमारे जो लर्नर्स हैं वो रीजनल हो सकते हैं, बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट स्वयं प्लेटफॉर्म विच इज अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, तो वहाँ भी थोड़ी अगर आपको जो आपका कॉम्पिटिशन है वो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और भी यूनिवर्सिटीज़ के जो कोर्स फेयर्स हैं उनके साथ है, तो हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी या ठीक नहीं होगी तो अच्छा नहीं लगेगा, खराब लगेगा। तो ये सारी चीज़ें 4 क्रेडिट कोर्स हमें लिखा हुआ है, 20 आवर्स ऑफ वीडियो और 20 आवर्स ऑफ रीडिंग मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपको थ्योरेटिकल पॉइंट इसको क्या होता है 2-10 मिनट हम लोग बातचीत भी करेंगे। फिर कोशिश ये करना चाहिए जब आप लेक्चर रिकॉर्डिंग करें, अपने आप को हमको 15-20% से अधिक नहीं दिखा रहा है, आपको देखने के लिए वहाँ कौन बैठा हुआ है ना, कंटेंट शुड बी देयर, कंटेंट ज़्यादा डोमिनेट करें, आप अपने आप को राइट बॉटम इधर रखिए, कंटेंट शुड बी देयर, वॉइस क्लैरिटी शुड बी देयर, और पॉइंट का एक क्वालिटी होती है कि क्रिस्प मटेरियल हो, कई लोग उसको पूरा का पूरा टेक्स्ट डाल देते हैं, वो ठीक नहीं लगता है, वो लिखे हो, और 15% डायरेक्ट लेक्चर फोकस ऑन टीचर, इधर से 15% आप फोकस करें, उससे ज़्यादा ना करें, कोई लाइन नहीं बनी हुई है, एक आपको कैरेक्टराइज दिया। फिर प्रेजेंटेबल एज पर टीवी प्रैक्टिसेस, जैसे टेलीविजन को आप रोज देख रहे हैं, जैसे वहाँ की प्रैक्टिस दिखती है उस हिसाब से आपको भी प्रेजेंटेबल करना है। पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज में एडिटिंग वगैरह का काम है, तो वो तो हमने कहा कि आपको करनी ही नहीं है, आप किसी से करवा रहे हैं। जैसे हमारे PHU में TLC कई हैं, 2-3 सेंटर्स हैं, IIT के जो ऑफिस है उसमें नीचे TLC में 2-3 हैं एडिटर हैं, वो लोग करते हैं, और भी लोग हैं एडिटिंग कर देते हैं, आपको बना के रेडी करते हैं, आपको दे देंगे, और आपको उसका सिर्फ लिंक को पेस्ट करना है अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में, जिससे उसको ट्रांसमिट करना है, जिससे उसको आपको दिखाना है, डिसेमिनेट करना है। और आप कोर्स कंटेंट को डालने के पहले नेचुरली बना के एक बार भेजा जाता है ताकि रिव्यू कर लें, ताकि देख लें, तो लोग देख लेते हैं कहीं अगर नॉर्मली कोई अब रिव्यू में चेंज नहीं होता है, क्योंकि सबको मालूम है कि खर्च जब लग गया है तो उसका हम अगर अगली बार के लिए आपको सजेशन दे देंगे कि जब नेक्स्ट टाइम जब आप उसको अपडेट करें या चेंजेस हो तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तो रिव्यू में ऐसा कुछ होता नहीं है, रिव्यू सिर्फ आपको अगले फर्दर जब सेकेंड राउंड आएगा उसके लिए आपको सजेशंस होते हैं। और बाद में कि रिव्यू ऑफ कोर्स कंटेंट बाय NC एंड अप्रूवल, 4 से वीक ऑनलाइन कोर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम बाय CG की कोर्स कंटेंट के द्वारा किया जाने के बाद वो 4 हफ्ता के अंदर अंदर आपको सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि आपने डेट डिसाइड किया हुआ होता है और डेट ऐसा रखा हो जाता है जिसमें सेशन की शुरुआत हो, सेमेस्टर के साथ साथ बैच करें। अगर आपका क्रेडिट ओरिएंटेड कोर्स है तो, और नॉन क्रेडिट ओरिएंटेड कोर्स है जो ऐसे ही पढ़ के सिर्फ शौक के लिए लोग पढ़ते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस है, होम साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, साइकोलॉजी के बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हेल्थ अवेयरनेस की चीज़ें हो सकती है। जो कोई भी व्यक्ति चाहता है पढ़ना और शौक से पढ़ना चाहता है, उसको क्रेडिट से मतलब नहीं है, रिटायर्ड है, शौक से पढ़ने वाला भी बहुत व्यक्ति हो सकता है, तो उसके लिए भी ऐसे कोर्सेज हो सकते हैं, वो कभी नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं स्टूडेंट्स के पर्पज के लिए बना रहा हूँ तो सेमेस्टर से मैच करना चाहिए, उसके स्टार्ट डेट या एंड डेट, ओनली देन द रजिस्ट्रेशन विल बी प्रॉपर इन नंबर, और रजिस्ट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होना चाहिए तभी आपकी पॉपुलैरिटी होगी। बाकी वीडियो क्वालिटी चाहिए, कंफर्म स्टार्ट डेट एंड डेट सब। वैसे हमने जब भेजा कि अपना एक प्रोमो वीडियो बनाया और भेजा फंडिंग एजेंसी को,
3-4 बार हमने कहा कि रिजेक्शन क्या हुआ, वो उन्होंने कहा कि इसको फिर शॉर्ट करिए, क्योंकि आज का लर्नर पेशेंस नहीं है उसके पास। आज की लाइब्रेरी खाली पड़ी है, लर्नर नहीं है। आज का टीचर परेशान है, स्टूडेंट रोड पे है, आने के लिए तैयार नहीं है क्लासरूम में, उसके साथ बहुत सारे एंगेजमेंट है, इतने सारे सोशल मीडिया है, पैदा होते ही आपने उसको मोटरसाइकिल भी दे दिया, स्कूटी भी दे दिया। उन तमाम बंधनों को तोड़ के आपको क्लासरूम में खींच कर लाना है स्टूडेंट को, नॉट इजी टास्क। सो जो बिटवीन द लाइन्स की अगर चीज़ आप उसको नहीं देंगे तो ही विल नॉट कम इनटू द क्लासरूम। सिमिलरली आज किताबें रैंक पर धूल भाग रही है, लर्नर नहीं आ रहा, बहुत आएगा, एहसान करेगा तो देखेगा अच्छा मेरे सब्जेक्ट क्या है, खोला थोड़ा लगा गया प्रीफेस पढ़ने, लगा काम की चीज़ है तो फिर कंटेंट भी आएगा। तो कंटेंट या प्रीफेस भी इतना अच्छा होना चाहिए कि उसको किताब को खोल सके। जब किताबें आप देखें प्रीफेस कंटेंट डिटेल कंटेंट हो तब जाके लर्नर शायद आप एहसास करें कि वो खोल दे, वरना आज ऑनलाइन कंटेंट के चक्कर में वो सारी चीज़ें परेशान हो रही हैं जो शायद उसके और बेहतरीन के लिए हो सकती। तो ये मेरा अपना था जिसको हमने भेजा था और एक्सेप्ट हुआ था, और फिर जब हमको ये मिला कि वी हैव इनवाइटेड यू फॉर द कोर्स क्रिएशन, तो ये मेरे लिए एक खुशी का पल था, खुशी का क्षण था। ऐसे ही आपको अपना कोर्स क्रिएट करके अगर लगता है कि हमारे में क्षमता है, हमारी टीम अच्छी है, तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच स्टूडेंट। अदरवाइज फिलहाल आपको प्रैक्टिस करने के लिए घर जाएंगे, डाउनलोड गूगल, रजिस्टर योरसेल्फ एज अ एडमिनिस्ट्रेटर और उसको खोल के देखते रहिए, एक एक चीज़ आपको दिखाई पड़ेगी। सब कुछ जो हमने बोला हुआ है कि दिखेगा, कब स्टार्ट करना है, कब क्या करना है, क्या होगा, कोर्स कितने दिन का होगा, कितने घंटे का होगा, सारी चीज़ें उसमें आपको देखिए। मॉडल नाम से ही कितना प्यारा रखा है, देखिए नाम कितना बढ़िया रखा है, इसका नाम का अर्थ क्या है, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसमें कोर्स मटेरियल कोर्स स्ट्रक्चर्ड है। और एक ऐसा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का क्या होना चाहिए खूबी कि वो आपको डायनेमिक लर्निंग इन्वायरमेंट दे, जहाँ दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो, टीचर का भी हो, लर्नर का भी हो, इसको कहते हैं डायनेमिक लर्निंग इन्वायरमेंट, दोनों के इन्वॉल्वमेंट हो। तो नाम कितना सुंदर रखा है मॉडल कि मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड व्हिच गिव्स डायनेमिक लर्निंग इन्वायरमेंट। इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सॉफ्टवेयर से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जानी जाती है या अवेलेबल है, यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम। और अपने आप को मार्केट को सेलेक्ट बनाने के लिए कैश लाइंस, टैग लाइंस भी रखा जाता है। जैसे स्वयं का टैग लाइन है क्या, एक्सेसिबिलिटी एंड क्वालिटी, इडियट्स का है रेस्टलेस लर्नर्स चेंज द वर्ल्ड। तो ये सब टैग लाइंस है, आपको स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना है, लर्नर्स को, स्टेक होल्डर्स को अट्रैक्ट करना है। विदेशी यूनिवर्सिटी ऐसे तो अट्रैक्ट करती है ना कि भाई, और आज वो लाखों करोड़ डॉलर कमा रही है, कहाँ से, बाहर के कंट्रीज के लोगों से। उनके पास तो स्टूडेंट स्ट्रेंथ ही नहीं, वो तो एक एक बिल्डिंग में एक एक यूनिवर्सिटी चल रही है। बाहर के कोर्सेरा, ये सारे स्टैनफोर्ड और बाहर की जो यूनिवर्सिटीज हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे लोगों का कोर्स दिखता है। When the Indian universities will appear in this list, I'm waiting for that time. And the youngsters like you people are going to do that. तो वो आपको अपना अभी प्रेजेंस को लाना है सामने। बहुत सारा काम भारत में भी लोगों ने किया है, NPTEL है, साक्षात है, वर्चुअल लैब है, मुकिट IIT कानपुर नाम से है, जैसे नाम क्या ना मॉडल या स्वयं मुकिट उन्होंने अपना बनाया है इंडिविजुअल। NPTEL तो सामूहिक है, मुकिट अपना बनाया है, उसमें भी इकोनॉमिक्स में देखेगा, साइकोलॉजी में देखेगी, एग्रीकल्चर में देखेगी। तो वैसे सारी यूनिवर्सिटीज आ गए कि अपने अपने प्लेटफॉर्म्स आप बनाइए और अपने जो टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं या और लोगों को भी जोड़ के उस प्लेटफॉर्म पे आप कंटेंट को डेवलप करके रखिए। IIT BX मुंबई का है, EDX कोर्सेरा, इन सब प्लेटफॉर्म से अगर कोई कोर्स करता है तो वो UGC का जो स्वयं रेगुलेशन है उसके द्वारा वो क्रेडिट ट्रांसफर करके लौटा ले आ सकते हैं। फॉर क्रेडिट हमने पहले ही बता दिया। ये हमने चैलेंज बताई है कि 50% स्टूडेंट कैन टेक फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म्स। क्रेडिट 1315 घंटे का क्रेडिट लोगों के साथ चर्चा कर ही दिया, कोई बात नहीं।
हाँ, ये नोट हमने बताया टीचर स्टूडेंट के नॉट रजिस्टर्ड। और इसके एडवांटेज है कि ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है, टीचर और स्टूडेंट दोनों अकाउंटेबल है और रिस्पांसिबिलिटी शेयर्ड है। इसलिए इस तरह की जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है आज सक्सेसफुल है और ऑथेंटिक है और इसको बहुत प्रायोरिटी मिलती जा रही है। इसको छोड़िए। नेशनल कोऑर्डिनेटर्स या फंडिंग एजेंसीज ये आपके हैं 9। देयर आर 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। हमारे सब्जेक्ट के लिए या आपके सब्जेक्ट के लिए कौन है? यूजीसी और सीईसी। यूजीसी नॉन टेक्नोलॉजी पीजी सब्जेक्ट्स, एंट्री इंजीनियरिंग वालों के लिए, सीईसी नॉन टेक्नोलॉजी यूजी स्टूडेंट्स प्लस 40 पीजी स्टूडेंट्स को भी ट्रांसफर कर दिया यूजीसी में, क्योंकि यूजीसी में लोड ज़्यादा आ गया, 117 सब्जेक्ट पे बन रहा है, तो 40 को शिफ्ट कर दिया सीईसी को। भाई आपका अनुभव बहुत है, 1993 से आप ये काम कर रहे हैं, तो आपको ट्रांसफर कर दिया सीईसी को। इग्नू को कहा गया डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम बनाइए, एनसीईआरटी को बुला गया स्कूल लेवल के प्रोग्राम्स बनाइए देश भर के लिए। एनआईएस जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, उनको कहा गया जो आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको तैयार करिए। आईआईएम बैंगलोर को बोला मैनेजमेंट के लिए। एनआईटीटीआर जो टेक्निकल टीचर्स हैं जो इंजीनियरिंग के, उनके लिए रिफ्रेशर कोर्सेज और इंटीग्रेटेड कोर्सेज बनाने के लिए चेन्नई को दिया गया। एआईसीटीई को कहा गया सेल्फ स्पेस्ड कोर्सेज या लर्निंग कैटेगरीज के प्रोग्राम्स बनाए। तो ये तो 9 जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं वो देश के लिए है। यहाँ आपका ये मतलब नहीं कि बाकी लोग नहीं करेंगे, ये आपको देखने के लिए जाके देखिए कैसे लोगों ने बनाए। आप अपने इंस्टीट्यूशन के लिए बनाइए, आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए बनाइए ग्रुप बना के। जैसे सेमिनार कॉन्फ्रेंस अब जब आया ना कि टॉप 100 यूनिवर्सिटी करेंगे तो सारी यूनिवर्सिटी से आप शुरू हो गया कि नहीं बनाना है ऑनलाइन कोर्स शुरू करना है। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल्स है, ये तो एक सेटर्स है कि शुरू में गवर्नमेंट ने फंड देके इनको खड़ा किया, इकट्ठा किया ताकि हम एक साथ यूनिफाइड एक प्लेटफॉर्म दे सकें। हम लोगों को एनआरसी जो मिला है नेशनल रिसोर्स सेंटर, वो टीचर्स के लिए कोर्स बनाने के लिए मिला है और रिसर्चर्स के लिए। इसका नाम दिया गया नेशनल रिसोर्स सेंटर्स। और इस तरह से पूरे देश में 66 नेशनल रिसोर्स सेंटर्स है। एक नेशनल रिसोर्स सेंटर मेरे पास भी है जो अर्थ साइंस का है, जियोलॉजी है उसका है। और ये एनआरसी कहाँ खोले गए? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, आईआईटीज में, एनआईटीज में, आंसर में, आईआईसी बैंगलोर में, इसी तरह से एचआरटीसी में और आईआईटी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में भी। टोटल 66 एनआरसीज आर वर्किंग एट द मोमेंट। इनिशियली देयर वर 77, लेकिन 12 नहीं काम कर पाए, बंद हो गए, बट एट द मोमेंट 66 आर वर्किंग। बस आपको लास्ट ये आपके तो रिफ्रेशर कोर्स में ये मेरा अपने कोर्स का हाईलाइट है। जो भाई कोई बोलता है तो उसको अवेलेबल दिखता है कि कोर्सेज है जो अवेलेबल है। रिफ्रेशर प्रोग्राम में टीचिंग के अंतर्गत आपको पता मैनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम में टीचिंग। अब ये जो मैं बात बोल रहा हूँ कि सारा विदेशी यूनिवर्सिटीज कब तक देख के हम लोग आपको दिखाते रहेंगे ये यूनिवर्सिटी में, ये यूनिवर्सिटी में, ये यूनिवर्सिटी में। अरे भाई इंडियन यूनिवर्सिटीज में तो देखने चाहिए ना, कब आएगा, कब दिखेगा अलीगढ़, बीएचयू, इलाहाबाद, जबलपुर या और तो ये लोग तो तैयार खड़े हैं कोर्स पर लेके, और हम झांसी की रानी की तरह से पुराना तलवार लेके उसे फाइट करने के लिए खड़े हैं और वो तोप लेके खड़े हैं। क्या हुआ? वो जीतेंगे हमारे ही शहादत होंगे। ये सारी विदेशी यूनिवर्सिटी आपने देखिए कोर्स पर बना कर लिए खड़ी, ऑस्ट्रेलिया सारी स्टूडेंट का हमारा तो टीचिंग लोड नहीं है। यहाँ पे 142 का कोर्स करना है, ज़्यादा हमारा डाइवर्सिटी है, बट एनी हाउ वी हैव टू फाइट विद देम। हमारा उस वेट को कॉपरेट करना है। सो अनलेस वी आर रेडी फॉर दैट, हमारे लिए मुश्किल सर्वाइवल। जो हमारे कमजोर जो 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 यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वो चेंजेस बंद होंगे। जैसे एक दौर आया था इंजीनियरिंग कॉलेजेस का कि 80 के दशक में खुले, 90 के दशक में खुले, लेकिन बाद में करीब 2500 कॉलेजेस बंद हुए। तो वो नौबत नहीं आती कि वो स्थिति हमें फैसला करना पड़े। ये सारे विदेशी नाम दिखता है, कब तक दिखाते रहे इसको? अच्छा नहीं लगता दिखाना। यहाँ भारत के यूनिवर्सिटीज का नाम आना चाहिए। और अब तो ये आपकी लेटेस्ट रैंकिंग वगैरह में भी है कि आप जितना बनाएंगे कंटेंट उससे आपके रैंकिंग बेहतर होगी। ये कब आएगा हम लोगों का नाम? इसको हम यही में बंद करता हूँ और बात करेंगे।